So, hey guys, welcome to the podcast number two. And today I have a new guest with me, my dear friend Saurabh. So, Saurabh Sudke, I'll introduce him, what he does, and what is he involved in these days. So, first of all, he is my friend. He's a personal trainer. He's a nutritionist, and with that said, he also owns a gym, and he's basically a gym owner. He runs the gym. He also gives personal trainings, and he's into managing events. I went through his Instagram, so he does some events like on a football event, let's say, or a fitness event, so to say. And with that, also he also is a speaker, so he speaks at certain events. I have on his Instagram, I have seen him speak not just on the Instagram, but again in front of a crowd, which I aspire to do, and that's why I'm going to pick his brain today on that thing. And uh, again, for first of all, I'll read his Instagram bio. Okay, that's what I am apparently doing. Okay, so Instagram bio अच्छे से रखना for the people who are going to be next in the guest list. Yeah. So uh, first of all, his bio says director and owner Surya Fitness and Wellness. He's a K11 personal trainer, certified from K11. He's a nutrition expert, and other certifications of his are there. He's reps registered exercise professional, which is the register of exercise professionals. Okay, and he's a NSQF level 4. Again, that is again a government accredited certification, and he's a speaker. So this Instagram he tagged speaker at scenes by scenes by Avalon. Avalon. Yeah, so I went through the Instagram. It is pretty damn cool because I see many of the speakers who I look up to on there. I will ask about this later. And yeah, then there is his link to his form and everything. So his Instagram and everything is obviously there in the description. So um, did your introduction, Saurabh. So first of all, I want you to introduce yourself. What are you? What is your why? And what do you do for? Right? Okay. So I'm Saurav Suduke. I'm owner and director of Surya Fitness and Wellness, and I've done my certifications from KLM School of Fitness Sciences. I've done my personal training as well as a sports nutrition course from K11 and got certified because the reason behind that was that I wanted to set up a gym. For that, if the owner knows everything about nutrition science and exercise science, then it becomes easier for him to understand the mechanics, like how to handle the clients and what his personal trainers and his fellow colleagues are doing with their clients. Are they really providing True, result? true. So that was the motive behind it. So I went through various institutes and all. So my parents also searched for that, and after that we come to the conclusion that KLM is the best institute in which you can do your education. So I did my education from there, and actually we were having gym from 10 years, so we renovated it, and now it has completed 6 months, and I'm handling the post of director over here. So we conduct various events on various occasions. So there I also deliver the speech on fitness about your lifestyle and all. So that's So as if I have heard it correctly, so you were owning like your family is into the gym business, right? yeah. Fitness industry, like they are there from before. So can you reflect on that? कि कब से है? Okay. So basically the first gym which was started in 1995 in Dhule was started by my father. Actually he is So assistant DMC commissioner. Yeah. before you move forward, can you just say to the audience where is Due and where it is like located? Because again, I Okay. also don't know a lot about it. Okay. Okay. So Dhule is the place. It's near Nasik and Jalgaon, you can say. Okay. Yeah, yeah, at that place. You can call it Khandesh also. It's a particular place. It's a group of districts known as Ko- Khandesh. So Dhule is Khandesh. in that.
Khandesh, yeah. Like Vidarbha, Marathwada, we have no? That type of Khandesh. It's in Oh, Khandesh. Yeah. So in Dhule, in 1995, first gym was set up. That was by my father's friend. And my father is also assistant DMC commissioner, but he was passionate about fitness. Like you may be knowing, like Lathi Kati and all. These are the activities which were done in ancient times. So he mm-hmm. was passionate about those activities. So he told his friends that yeah, if you're starting gym for ladies only, special ladies gym, so I can handle that gym and I can train gents also into it. So his friend gave permission and they started the gym, and currently it's working pretty good. So after that, in 2010, my father decided to So set up his own gym. that means that when he started in 1995, right? Five, yeah, So 1995. so basically what I'm getting it from कि उनके दोस्त का जिम था, right? Yeah, उसका उनके जिम था दोस्त का and जिम था. he basically managed it. Wow, Yeah. cool. And एक्चुअली then उनका सुबह 9 से 5 उनकी गवर्नमेंट जॉब, और बाद में सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे वो वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाते थे और ट्रेनिंग देते भी थे. अच्छा मतलब it was like job भी कर रहे हैं and he is doing this also because he या loves it, right? पैशन और प्रोफेशन दोनों उन्होंने अलग तरह से मैनेज करके रखा था वो टाइम पे. सही सही. This was yeah. So this went ahead, and in 2010 we set up our own gym with the name of Surya Fitness and Wellness. At that time, we were known as Surya Gym because fitness wellness का trend वो time पे नहीं था, और Yep. many people ask this question that from where this Surya name came. So there is a person no, by the name of Arun Datar sir. He is from Pune. So basically पापा के वो गुरु है, तो उनके जिम का नाम सूर्या, तो जस्ट एज अ ट्रिब्यूट बोल के हमने सूर्या नाम रखा हुआ है. और Oh, super. जो एक्टिविटीज मतलब एंशियंट फिटनेस से मतलब उनका है अच्छा सा ताल्लुक, तो उन्हें सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा पसंद है, तो जस्ट वो सूर्या नाम उससे कनेक्ट करके किया था. Mm. सो वी कंप्लीटेड 10 years and I was not into fitness from first. I wanted to join medical field, but because of some reasons, I was not able to join it. Mm. And then my Many brother reasons. once sat with me and yeah, he told me that, see, Saurabh, and by the way, I wanted to clear that I'm not discriminating anyone, but my brother told me that, Saurabh, see, if you are going to do MBBS, you have to spend a lot of money into it, and time will be consumed like 5 to 6 years if you clear Yeah. each and every year. Yeah. And after that also you're going to earn 30 to 40,000 or max to max 50,000 in government hospitals. After that you will be telling us that I want to pursue for surgery, MD and all. So for that we have to pay Or nearby 1 crore and all. So if you're doing certifications from KLM, because he had heard about it and he was also into fitness from 6 to 7 years. I'm speaking about 3 to 4 years back. this is your So he brother, was right? into fitness. Said Yeah, it to. he's my brother. Yeah, and he was doing his professional bodybuilding also, and he's also engineer, and he has his own company also. So he was telling that पढ़ाई में कुछ नहीं है, तू business कर और certifications कर, तुझे interest है, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, तो तू ये कर सकता है. सो आई थॉट दैट यस, बात तो सच है, और बाद में और होने के बाद में दूसरी एग्जाम्स वगैरह क्रैक करेंगे, ये सब चीजें करने से अच्छा है हाँ. ट्राई करते हैं क्या है. सो आई वेंट टू K11 और सब सर्च करके रखा ही था घर वालों ने पहले से. तो मैं गया और लाइक यू मे बी नोइंग कि K11 में हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लासेस ये Yes. पहले रखे जाते हैं. Yes. तो लिटरली मैं पहले वीक में मैं क्लास में बैठकर सोता था, मुझे नींद आती थी डायरेक्टली. और एक बार मुझे सौरभ सर, उनका भी नाम सौरभ ही है, तो उन्होंने और प्रांजलि मैम ने भी एक बार ऐसा किया Yeah, था कि I उन्होंने know, मुझे sir. खड़े किया क्लास में और पूछा कि सौरभ कैन यू प्लीज नेम सम बोन्स व्हिच वी वर स्पीकिंग अबाउट. तो मैंने बोला, मैम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, और मैंने सब आंसर एकदम फ्लुएंटली दे दिया. तो वो पूरे क्लास में बोलते कि स्टूडेंट होता है ऐसे कि सोकर भी उन्हें सब चीजें पता रहनी चाहिए. सही तो सही. this was the thing. तो ये सब चीजें, क्योंकि पहले बायोलॉजी तो मतलब वो बोलते हैं ना कि घोल कर पी जाना, हाँ. हाँ उस तरह Based से on हुआ that. था.
या सो इस तरह से सब हुआ। फिर एक चीज तो मतलब मेरे दिमाग में आ गई थी कि अभी करना है तो एक ही चीज करना है, मतलब फिटनेस रिलेटेड ही कुछ भी करेंगे, और एक ही फील्ड मुझे टारगेट नहीं करना, जैसे इंटू ट्रेनिंग ऐसा ही नहीं, या इंटू न्यूट्रिशन ऐसा नहीं, मुझे सब चीजों को हैंडल करने का एक मतलब पहले से ही था, जज्बा था। तो हम्म। फिर पुणे में जब था तो बहुत सी जगहों पर मैं गया, मतलब मिनिमम मैं बोल सकता हूँ कि मैं 50 to 60 जिम्स मैंने विजिट किए हुए हैं पुणे में। रीजन बिहाइंड दैट वाज कि मुझे आर धुले एंड में डी ऐसे, बेसिकली. yeah, and basically I was having the goal that if I'm in Pune, no, so I should be gaining all the knowledge in which are in metro cities and haven't reached to Dhule. So I wanted हम्म. to take that knowledge with me. So I visited many places like Nitro Fitness, and also I met various managers in it, and I was asking them one question, that what are the drawbacks of setting up a gym and like interior and all. So they guided me as much as they can. And after that, in March, lockdown happened, and I came in July. So it was like an opportunity for me in lockdown, because I was standing in front and doing all those things which I wanted to be done. And firstly, I was just calling interior designer and engineer and was telling them that I wanted to do this thing, that thing. But now it was an opportunity for me to stand in front of them and get all those things done in front of me. हाँ. तुम So इंचार्ज और यू देयर, राइट. yeah. So basically, many people were telling कि to the agents that sir हमें वहां पर वो साइट पे काम के लिए नहीं जाना. Reason behind that is कि मालिक जो है वो हमारे सामने खड़े रह के हर एक चीज करवा देता है. So this ऑब्वियसली. was things happening. Yeah. So this was thing happening, and after that I did various things, like I collaborated with various sports academies and all. This reason behind this is कि sports वाले जो लोग होते हैं ना, मतलब जो एथलीट्स वगैरह हाँ. होते हैं, so उन्हें एक ही चीज के ऊपर फोकस नहीं करना होता है, उन्हें ओवरऑल फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. उसमें बराबर. न्यूट्रिशन भी आ जाता है आपको. सो मैंने कोलेब्रेशन किए, सो मुझे उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि एक चीज मैंने पहले से फिक्स करके रखी थी, क्या था, सर से बहुत मीटिंग्स होती थी. सो सर ने भी वही बोला था कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड जिम बनाओगे ना, तो आपको ये 10 साल आपने कंप्लीट किए हुए हैं, तो आपको 20 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. सो आप लोगों को रिजल्ट्स दो, और जो सिलेक्टेड क्राउड है, मतलब जो टाइम पास के लिए नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को आप यहाँ पर रखो, तो आप ज्यादा फेमस हो पाओगे. And I remember that once I called you, so we were also discussing about the same thing only, that if you are हाँ. providing results, then people will know you for longer time. ट्रू ट्रू. Yeah. So this was the thing. Yeah. ग्रेट. एंड द थिंग इज कि ना, व्हाट यू आर सेइंग कि बेसिकली जो करियर के बारे में था ना, एमबीबीएस करना है एंड एवरीथिंग. सो मैं भी पहले सोच रहा था कि ना मैं क्या करूंगा एंड व्हाट नॉट. राइट नाउ अगेन विद दैट सेट मैं डिग्री कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंस में. बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज यू नो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई टुक इट. सो वो एक अदर चीज है. बट लॉजिकली स्पीकिंग, जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बोला that instead of doing MBBS, again, MBBS is not a bad thing. I know doctors, it's a really Yeah. damn hard job. Okay. Yeah. So Definitely. when, and they have to spend like 5 years, uska, I don't know exact, but five Yes. years, Yes. something Six like years. 6 years. 6 years, and then again specializations and whatnot. And then you go to a job, you are a fresher then. जब fresher हो Yeah. तब तुम 30s के हो गए हो, literally. Yeah. Yeah. Then Definitely. your career blossoms when you are in your 40s. Yes. And after And that, you have to set up your own hospital also. yeah, and that's like, you know, it's again, it's not for everyone. And if again, if मैं बोलूँ कि ना, मुझे भी अंदर से लगता था कि आई वांट टू डू समथिंग टू हेल्प पीपल इन द सेंस कि ना उनको हेल्दी बना उनका, लाइक पहले तो Yeah. रिलेटेड टू योर बॉडी, इम्प्रूव योर हेल्थ एंड एवरीथिंग. Hmm. So the Yes. best route for it was like get a fitness certification, get a nutrition certification, and self learn, actually self educate. Because एंड ये सब करने के बाद एक्चुअली मुझे मालूम पड़ा कि like when I did the K11 certification and everything, I got to know that certifications are not enough. You have to literally, you have to read books.
Yeah, एंड इवन डूइंग डिग्री इज नॉट इनफ एक्चुअली अभी. तुम 5 साल yes. का डिग्री करोगे, 3 साल का डिग्री Yes. करोगे, इट इज लाइक यू आर लर्निंग द आउटडेटेड स्टफ. तुम तुम जो चीज पढ़ रहे हो, Yes, जब you have to update yourself. या जो चीज तुम पढ़ रहे हो ना, वो सिलेबस जब भी तुमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए तभी वो सेट हुआ है, तभी भी नहीं हुआ रहेगा, एंड वो रेलेवेंट उस टाइम के लिए. और जब तुम 5 साल बाद ग्रेजुएट हो जाते हो, तभी क्या होता है कि तुम ग्रेजुएट तो हो गए, बट तुमने 5 साल पहले आउटडेटेड स्टफ सीखा है, तो अभी तुमको वापस रीलर्न करना पड़ेगा. एंड क्या हो जाता है कि द पीपल हु आर डूइंग एक्चुअली रीडिंग एवरी टाइम, Yes. सेल्फ एजुकेट कर रहे हैं, तो उनसे तुम पीछे हो जाते हो. बट ये क्या हो रहा है ना, लाइक ये सिस्टम में एक्चुअली हो रहा है ये, कि जो भी डिग्री कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली सेल्फ एजुकेटिंग देमसेल्फ, दे आर नॉट अपडेटिंग देमसेल्फ. और उसके वजह से नॉट एवरी वन, Yes. बट देर आर पीपल. सो क्या हो जाता है कि जस्ट बिकॉज दे हैव द डिग्री, हाँ उसको सब आता है, उसके पास डिग्री है. तुम्हारे पास क्या है? के11 का सर्टिफिकेट, 6 महीने का I think कोर्स. this is the reason. Yeah, this is the reason that in Ruby Hall in Pune, I've seen various dietitians giving Mari biscuit and tea written in the diet chart. तो ये कौन सा लॉजिक है मीन्स या अभी आपने वो, ये लिखने के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है फिर. हाँ वो कैसा है कि वो लोग लाइक उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, उनको वो सिखाए हैं, एंड हाँ. दे एक्चुअली थिंक ऑफ इट कि ना दिस इज द गोल्डन रूल बेसिकली. वो या ऐसा, ये जो लिखा है पत्थर की लकीर है, ऐसा हो ही नहीं सकता चेंज. एंड दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, दे डोंट इवन ट्राई इट, दे डोंट इवन एक्सपेरिमेंट इट. और द थिंग इज कि ऐसा मारी बिस्किट दोगे तो रिजल्ट भी मारी बिस्किट जैसा ही आएगा, हाँ डेफिनेटली. गल जाएगा चाय में डुबाओगे तो. तो एक्चुअली एक्चुअली नाइस स्पीकिंग एनालॉजी. एक्चुअली स्पीकिंग वो ये सब करते हैं वो लोग, एंड देन उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते, बट स्टिल दे लाइक मेनी ऑफ देम डोंट रियलाइज कि अरे इट इज नॉट वर्किंग, कुछ तो गलत होगा यस. ना. बट क्यों मालूम है नहीं कर पाते? बिकॉज अरे मैंने तो 5 लाख भरा है डिग्री के लिए, मैंने तो 1 करोड़ भरा है डिग्री के लिए, कैसे रॉन्ग हो सकता है, राइट? वही. ये मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उतना पैसा भरा है डिग्री के लिए, लाइक समथिंग अराउंड 5 lakhs आई एम गोइंग टू पे फॉर द डिग्री. सो इट इज लाइक, is it really like again I Worth. yeah, is it really worth? Because the Yeah. thing is, many of the stuff which they're teaching us in terms of nutrition for the sake of it, it is like very outdated, and even like everyone knows this, not just the students, the teachers also know this, Yes. but the thing is वो कुछ कर नहीं पाते because वो ऑर्डर ऊपर से आता है, System. Yeah, system का सिस्टम से fault है. आता है. And the advantage of studying in an institute which is like not a part of a big system, like for example K11 and other also, like तुम दूसरे भी gold जिम का हो गया, I like other certifications in general. Yes. So उनमें क्या होता है, these people, these organizations are actually the whole and soul, वही डिसाइड करते हैं. और सिर्फ एक्रेडिटेशन होता है, और एक्रेडिटेशन होने के बाद Yes. वो they can modify the things. So ये लोग अपडेट कर पाते हैं एक्चुअली, हाँ. एंड उनके पास कंट्रोल है. तो आई थिंक द लॉजिकल चीज तुम्हारे भाई ने जो बताया कि डू दिस एंड एक्चुअली स्टार्ट डूइंग समथिंग, बिकॉज बाय द एंड तुम्हारा एमबीबीएस उसके बाद स्पेशलाइजेशन हो जाता, तब तक तुम हाँ. एक्चुअली अनहेल्दी भी होते, अनफिट भी होते, एंड उसके साथ तभी तुम पैसे बनाना चालू कर दो, तो तुम्हें फिर बाद में वो 1 करोड़ जो गवाया है वो वापस बनाना भी तो है. Yeah, definitely. और वो 1 करोड़ में 2 पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियोज आ सकते हैं और आप एक डॉक्टर से ज्यादा कमा सकते हो. ये उसके हाँ पीछे हाँ हाँ, yeah. वो भी वही तो है एक्चुअली. लाइक जो जिम सेटअप के बारे में, आई रियली वांटेड टू आस्क यू दिस थिंग कि ना, लाइक हाउ टू गो, लाइक अभी इन योर केस तुम्हारे पास तो जिम लाइक 2010 से एस्टेब्लिश था, सो यू एक्चुअली हैड इट ऑन द हाँ. प्लेट. और ऐसा Yeah. नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट डिसक्रेडिटिंग यू, बट No, no, no. प्लेट में था, बट यू हैड टू एक्चुअली रीनोवेट इट एंड टेक इट टू दिस Yeah. लेवल एट व्हाट इट इज, राइट? अगर 10 साल पहले देखते तो जो ऑफिस में बैठो ऑफिस भी नहीं रहता था, Yeah. राइट?
So you Definitely. took it to another level, you and your family and your people associated with you. So तुम मतलब how does this work actually, let's suppose, like this is a selfish question from me कि अभी मुझे समझो जिम खोलना है, तो how should I go forward with it? First of all, the important thing is you should be having a प्लेस ओके, मतलब लोगों को ना ऐसी जगह चाहिए कि जहां पर जल्दी से पहुंच सके। ओके, मतलब ये हाँ। मैं 50% क्राउड का बोल रहा हूँ, तो रेस्ट 50% क्राउड तो आप अगर रिजल्ट दे रहे हो तो वैसे भी आपके पास में आने ही वाली है। तो ऐसी जगह सिलेक्ट करो ना कि जहां से लोग आपके पास में इजीली पहुंच सके। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, आपके पास में जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे अगर आपके पास में इक्विपमेंट्स है और अगर वो इक्विपमेंट्स के ऊपर वर्कआउट करके अगर आपको पीठ में मोच आ जा रही है या क्रैम्प्स वगैरह आपको फील हो रहा है, सो वो करके कुछ यूज नहीं है। उल्टा हम्म। ऐसी चीजें करके ना क्लाइंट आपकी बाहर जाके ना बदनामी करेगा। सो ये चीज होती है। या और मैंने जो यहाँ पर चीज फील की हुई है ना, मेरे जिम में मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा, इट वाज स्ट्रेटजी ऑफ कैजाज सर ओनली डेफिनेटली। सो हर एक आदमी के पास में आपको पर्सनली ध्यान देना पड़ता है। मतलब अभी कल का ही एक हो गया मेरे साथ में इंसिडेंट कि एक क्लाइंट को मैं न्यूट्रिशन कंसल्टेशन करा रहा था। सो जस्ट मतलब इट वाज अ रफ कंसल्टेशन, और वो होने के बाद में क्लाइंट मुझे बोलता है कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपको कुछ तो बताना है। हाँ बोलो, क्या बोलना है आपको? सर थैंक यू वेरी मच, आप जैसा लोगों से कनेक्ट कर रहे हो ना, सो दिस इज द बेस्ट वे। मैं गोल्ड्स में जा चुका हूँ, एबीएस में जाकर चुका हूँ, सब जिम्स में गया हूँ, पर मैंने आज तक कोई ओनर को फ्लोर पे या फिर हमसे बात करते हुए नहीं देखा। आप डायरेक्टली हमसे फ्रेंड की जैसा जैसे कनेक्ट कर रहे हो ना, सो सच में देखकर बहुत अच्छा लगता है यार, सच में कि मतलब ये रिव्यूज जो आते हैं ना, मतलब मैं खुद के बारे में ऐसा बता नहीं रहा हूँ, पर ये सबने हाँ, करना I चाहिए। understand because क्या many owners I know जिम जो चलाते हैं, they are like actually that is not their fault. The thing is कि वो लोग दूसरे इंडस्ट्री में से आ जाते हैं, यार like they literally don't know a lot about fitness industry. Many of like nowadays बहुत सारे जो trainers and coaches and nutritionists है, वो लोग gyms खोल रहे हैं. That is a good हाँ, thing because इंडस्ट्री के अंदर का इनसाइट वाला जो पर्सन रहेगा, वो अगर जिम खोलेगा तो इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेस बिकॉज ही नोज अ लॉट. सक्सेस, बट व्हाट या हैपेंस इज व्हेन समवन जिसका बिजनेस है नहीं, जस्ट बिकॉज उसको जिम करने का मजा आता है, उसके बाद थोड़े मन पैसे, है, लाइक पैसे नहीं, पैसे तो होते नहीं है, अगेन पैसे हाँ, यू टेक अ लोन एंड अगेन यू borrow money and everything, you use other यस, people's money. So या अगर तुम्हें कुछ, many of the owners I have seen like not just specific to रिसेंटली बट बहुत पहले से, कि ये लोग उनका बिजनेस समझो, समवन इज इनटू ऑटोमोबाइल बिजनेस, समवन इज इनटू बिजनेस ऑफ फूड, समवन इज इनटू अदर थिंग्स. नाउ द थिंग इज दीज गाइज आर वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू द जिम, उनको मजा आता है, गोइंग जिम, या इट्स लाइफ स्टाइल उनकी बन रही है, तो वो सोचते हैं चलो मैं जिम ही क्यों ना डाल लूँ. एंड फिर वो कैसे डालते हैं मालूम है जिम की ना, क्यों डालते हैं जिम, कि मेरा जिम होगा, मैं जाऊंगा जिम में कभी मर्जी, मेरा जिम होगा, खुद का जिम. और वो एक तो ग्लैमर जैसा लगता है जिम डालना। हाँ, या आई एम जिम इन ओनर बोल के हाँ हाँ, रहता है। इन्वेस्ट कर दिया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना, लाइक अभी तो यू कैन से 30 लाख समथिंग, तब तक उसमें हो जाएगा जिम गुड, टॉप नॉच भी नहीं, लाइक स्टार्टर, हाँ, ठीक है, मोर देन दैट हो सकता है, हो सकता है ना. हो सकता है और ऐसा। हाउ मच डू यू थिंक यू नीड फॉर टू गेट अ जिम स्टार्टेड? अभी जिम के ऊपर डिपेंड करता है आपको जिम कितना ये चाहिए, क्योंकि जिम फील्ड के अंदर ना हम वैसा मैंने तो नोटिस किया हुआ है कि हमने पर्सनली 1.5 CR तो भी हमने इन्वेस्ट कर दिया है, और हाँ. इसमें भी हमारा पहले से कुछ फ्लोर्स कंस्ट्रक्टेड थे और जगह खुद की थी, इसके वजह से ये हो पाया, नहीं तो ये हम्म. आगे का बजट है। और पर तो भी मुझे ऐसी कुछ कुछ चीजों पर लगता है कि इससे भी बेटर हो सकता था। मतलब अभी इसमें क्या होता है ना कि आपको जगह का भी पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। अभी हम्म. धुलिया में वी आर इन टॉप, ओके, पर वही मैं अगर सोचूं कि मुझे नाइट्रो फिटनेस के जैसा धुलिया में जिम ओपन करना है, तो वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक्सपेंसिव हो जाएगा रियली. हाँ,
तो वो आपको देखना पड़ता है कि अभी तक क्या चीजें यहाँ पर नहीं आई हुई है और आपको वो नई वहां पर इंट्रोड्यूस करनी है। मतलब आप हम्म सब चीजें एक जगह पर अगर देने जाते हो ना, तो आपको तो 3 से 4 करोड़ का भी जो आपने बजट बनाया हुआ है, सो वो भी कम पड़ जाएगा। और जितना आप सर्च करोगे उतना आपको कम इसके अंदर मिलने वाली है। सब चीजें आपको कम में मिलती है। सिर्फ एक चीज है, आपको सर्च करनी पड़ती है। आप कोई चीज के ऊपर हम्म डिपेंड मत रहो। ये है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो फ्लोरिंग मैंने ली हुई है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तुम्हें पता है केएलएन में भी वो इक्विपमेंट्स है, पुणे हाँ स्कूल। सो वहां पर मैंने उनके पास में एक मैटिंग देखी, फ्लोर मैट्स। सो दूसरे एक कंपनी के पास में मैंने वो मैट्स देखी। सो मैंने दोनों को जब कंपेयर किया, तब मुझे पता चला कि एक जो आदमी था वो मुझे 250 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट से दे रहा था, और दूसरा आदमी मुझे 70 रुपीज स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहा था। सो इट्स अ लार्ज डिफरेंस। तो मैंने ऐसा कंपेयर करके जो किया हुआ है ना, सो उसमें बहुत सा बजट आपका कम हो जाता है। अभी हाँ आप अगर सर्च नहीं करोगे और पहले ही आपको अगर कुछ चीज पसंद आ गई और आपने अगर ऑर्डर कर ली, तो आपका उसके बिल्कुल अंदर नुकसान होने वाला है। सो हम्म ये चीज है, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यस डेफिनेटली आप 60 to 70 लाख के आसपास में अच्छा जिम सेट कर सकते हो। पर सिर्फ आपको उसके अंदर ब्रांडेड इक्विपमेंट्स वगैरह वो नहीं मिलेंगे। पर या जिम हम्म अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा कर सकते हो। Yeah, and again, मैंने जो बोला ना, like the figure I put it out, so it was disregarding the rent and everything. It was just, just to get it bootstrapped. So basically यस, मैंने भी कुछ calculations किए हैं. So out of that I went to this number कि ना इतना हो सकता यस, है to get it running actually. And then again there is the यस, lease, rent, वही lease rent वही, and then फिर मैं लाइट बिल्स अलाउ। yeah, then money आता है, then cash flow चालू होगा, then वैसे होगा. So it's like yeah that. But with that said, जो हम लोग बात कर रहे थे कि like startup, तुमने जिम चलो, तुम ओनर हो and you are in as you are a trainer and a nutritionist, you have started a gym, so that's a really good thing which I like, which I really want to nahi, I'm seeing it right now. Many people who are into this field are starting this, और जो एक्चुअली जो द ट्रेंड इज शिफ्टिंग कि ना, जो दूसरे बिजनेस में से दूसरे इंडस्ट्री में से आने रहे जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लैमर है. सो गेट यू कैरी ऑन कि ना व्हाट शुड वी डू, लाइक लेट सपोज मैंने जगह देख लिया, इक्विपमेंट्स आर टॉप नॉच एंड एवरीथिंग. ओके, सो नेक्स्ट थिंग आपको जो ध्यान में रखनी पड़ती है ना, तो सबसे पहला, लोग आपका ना इंटीरियर वगैरह ये चीज नहीं नोटिस करता है, मैंने देखा हुआ है। लोगों को क्या चाहिए ना, लोगों को सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए आपसे। लोगों को अगर जो टारगेट उन्होंने, जो फिटनेस गोल उन्हें अचीव करना है, वो अगर आप उन्हें प्रोवाइड करके दे रहे हो ना, सो आपके पास में अगर पतरा जो होता है, उससे अगर आपके पास में जिम बना हुआ है ना, या ओपन एयर अगर जंगल जिम भी है आपके पास में, तो भी हम्म लोग आपके पास में आएंगे। सिर्फ हम्म आप उन तक पहुंचना चाहिए आपने। अभी बहुत से बार मैंने नोटिस किया हुआ है, मेरे पास में भी ट्रेनर्स है, मैंने भी उनकी मेंटेलिटी चेंज करने में ज्यादा टाइम लगाया है। पहले क्या मेंटेलिटी रहती है ना ट्रेनर्स की, कि या हमें पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए। ये उन्हें रहता है कि या हमने सर्टिफिकेशन किया हुआ है या कुछ है, या अगर आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड से हो तो आपको लगता है नहीं, मैं जनरल ट्रेनिंग क्यों दूं, मैं तो सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग ही दूंगा लोगों को। सो उसकी वजह से ट्रेनर्स उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, और क्लाइंट को लगता है कि यार ट्रेनर तो बहुत शान है, ट्रेनर हमारे पास में आता भी नहीं है। सो इसकी वजह से ये डिस्टेंस जो है ना, वो बहुत बढ़ते जाता है उन दोनों के बीच में। सो आप अगर ट्राई करते हो कि आप अगर 3 से 4 दिन भी अगर वो पर्सन को पर्सनल जनरल ट्रेनिंग के देते हो ना, चौथे या पांचवें दिन क्लाइंट खुद पूछता है, सर आपके पर्सनल ट्रेनिंग की चार्जेस क्या है। सो ये मैंने नोटिस किया हुआ है। इससे पहले आपको उन तक पहुंचना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उन्हें आप तक लेकर आना है। तो ये हाँ डिफरेंस है आपको, जो आपको उसके अंदर करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज कि होल्ड आई जस्ट आई थिंक तुम्हारा इंटरनेट, आई थिंक तुम्हारा कनेक्शन वीक हो गया. ओके कैरी ऑन. ओके, सो लाइक हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रेनर्स को, लाइक मैंने भी ये हाँ, नोटिस किया क्लाइंट्स तक। कि जाते नहीं है सिखाने, जनरल ट्रेनिंग क्यों दूं, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए मुझे राइट अवे. हाँ, यस, दिस इज द थिंग। और दूसरा कि आपको ऐसे लोगों के पास में पहुंचना है
जो आपके पास में आ सकता है। अभी जनरली क्या होता है ना, जनरल हम मार्केटिंग का अगर बारे में थोड़ा सोचें, तो लोग क्या करते हैं, बैनर्स वगैरह लगाते हैं, थोड़े फ्लायर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, आपकी जो पर्टिकुलर नीश से लोगों को आप इनवाइट करना चाहते हो, उन तक वो चीजें नहीं पहुंचती। जैसे अभी जिम्स में मैक्सिमम आने वाले लोग कौन होते हैं? रॉकेट बनते हैं, रॉकेट फ्लायर्स के। हाँ हाँ, यस, तो आप जो बैंकिंग सेक्टर में है, बाद में जो पे कर सकते हैं, आपको फीस पे कर सकते हैं, ऐसे लोग ही आपके पास में जिम्स ज्वाइन करने वाले हैं। या आप अगर हाँ कोई स्लम्स में जाकर अगर आप फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो वो कुछ नहीं, मतलब देख के फेंक देंगे, ये चीज वही होगा। एरोप्लेन बन जाएगा उसका। यस यस, डेफिनेटली। या मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो स्कूल्स के बाहर फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी फर्स्ट टू फिफ्थ में जो बच्चा है, वो कितना वो चीज को पढ़ पाएगा और समझ पाएगा? सो दिस द थिंग। सो आपको फ्लायर्स हो या आपको वो चीज लोगों तक पहुंचना है, जो बैंक्स में है, या फिर आप स्कूल में जाना चाहते हो, तो आप स्कूल के टीचर्स के पास में अप्रोच करो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे आप बिजनेस आपके पास में खींच सकते हो। या इन सिंपल वर्ड्स, आप लोगों को आप तक आने के लिए मजबूर कर सकते हो, आपके पैकेजेस पहले उन तक लेकर जाने के लिए। बाद में कॉलेजेस है, या कॉलेज के जो टीचर्स है, उनको आप बहुत सी चीजें ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो जिससे वो उनके स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर पाए कि या दिस इज द बेस्ट जिम, आप यहाँ पर जा रहे हो। क्योंकि क्या होता है, एक टीचर जो होता है ना, एक टीचर को मिनिमम दिन में से 400 या 500 बच्चों से मिलना होता है। हाँ सो अगर कोई टीचर, आप इमेजिन करो, जिसका पेट बहुत बाहर आया हुआ है और एकदम ऐसा फूला हुआ टीचर है, ऐसा एक इमेजिन करके देखो। या आई और वही अंडरस्टैंड व्हाट यू टीचर अगर 1.5-2 महीने के बाद में पतला होकर अगर स्कूल में वापस जाता है लॉकडाउन के बाद में, तो स्टूडेंट्स तो को तो डेफिनेटली पूछने वाले हैं, सर क्या किया, राज क्या है आपके फिटनेस का, राज क्या है? और सूर्या अगर फिटनेस। तो वही, वही तो वही। मतलब ऐसे मेरा एक कहना रहता है, मैं मार्केटिंग का जो कुछ भी बात करता हूँ ना स्टाफ में, वो भी वही बोलता हूँ, आप ना बैनर्स मत लगाओ, आप ना चलते फिरते बैनर्स बनाओ, जो हाँ कहीं पे भी आपकी एडवर्टाइजिंग कर पाए। ट्रू तो ये ट्रू। चलते फिरते बैनर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। सही सही बात किया। यू यू लिटरली 100, कितना, 100 क्या, हजार, हजार क्या, लाख रुपए की बात की तुमने, करोड़ों की बात की है लिटरली। एंड वही जो मैंने लाइक तुमने जो मार्केटिंग के बारे में बोला ना, एक्चुअली मैं आई हैव वर्कड एट लाइक 2 3 लाइक, अगेन मैंने उन वो जिम्स में लाइक वेरी ब्रीफ मोमेंट, वेरी स्मॉल मोमेंट के लिए काम किया था। लाइक वन जिम में 7 days, अदर जिम में अ मंथ, और लाइक अदर 10 days समथिंग ऐसे। बिकॉज द थिंग इज आई डिडंट लाइक द कल्चर एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई आई क्विट। आई डिडंट इवन टेक द सैलरी एंड एवरीथिंग। क्योंकि व्हाई, बिकॉज आई, मुझे पसंद नहीं आया कल्चर, तो इट्स बेटर टू कि ना, यस don't take the यस salary यस। from them. So what was happening there is कि ना, uh, like what happens generally now, not there, but this happens generally कि trainers don't, like the personal trainers are established in the gym, they don't try to give personal general training, they don't try to help. And the reason being is कि ना, like they are like कि अरे क्या करूँगा मैं, बेसिकली यस मेरे पास लाइक पगार तो मिल रहा है ना, खड़े रहता हूँ ना, पर्सनल ट्रेनिंग आएगा अपने पास। तो दैट्स हाँ एटीट्यूड विच दे हैव। बट फैक्ट बीइंग, जो मैंने रियलाइज किया, अगर मुझे पर्सनल ट्रेनिंग भी मिल रहा है, बट अगर मैं वहां पे हूँ, लाइक मैं 8 घंटा काम कर रहा हूँ, 9 to 5 वॉट एवर, 8 hours का शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, और 8 hours में समझो मेरे पास एक पर्सनल ट्रेनिंग है, लेट्स सपोज लकी हूँ मैं, मेरे को मिल गया एक पर्सनल ट्रेनिंग, एक पर्सनल ट्रेनिंग मिल गया, 1 hour मेरा उसमें गया, 1.5 hour, चलो 2 hours वो रेस्ट लेना, और लाइक टिफिन कुछ तो खाना यस है उसमें चल रहा है, तो ना 6 hours बचा है, चलो 5 hours बचा है, तो 5 घंटा में सिर्फ खड़ा रहूंगा। एंड पहली चीज तो, खड़ा ही रहना था तो जॉब क्यों कर रहे हो, जाओ नेशनल पार्क में जाके खड़े रहो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि मतलब, अगर मुझे पैसे मिल ही रहे खड़े रहने के, तो मैं क्यों खड़ा हूँ एक्चुअली। मैं अगर पहली चीज तो, अगर मैं सिर्फ खड़ा हूँ वही जगह पे, तो मेरा मन नहीं भरेगा, मुझे ऐसा लगेगा मैंने कुछ किया है नहीं, फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा कुछ एक्चुअली। नहीं किया। हाँ, यस ऐसा लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम पास कर रहा हूँ, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मेरा लाइफ है।
And if I, instead of doing that, if I go and let's suppose I meet new people, actually मैंने जो भी gyms में गया I made connections, even if I'm a member there or even if I'm a trainer for brief movement. So I have literally talked to them. I have shared Instagram profiles, like this. I have recommended Yeah, books. yeah. I have touched upon their form. I have helped them with their form and technique. उनको stretches बताया, mobility drills बताए हैं, उनको nutrition तक भी बताया है कि क्या होना चाहिए. And it's like, when this Hmm. happens, let's suppose one trainer is doing this. Now this makes a very good impact. You know why? Because the thing is, every person, every member is now watching at you कि ना ये trainer ये नया आया है, इसमें Ah, कुछ he's दम है. doing something new. Yeah. And then you get personal training clients, like you get opportunities, and now you take those opportunities. Or after some time what happens is ki, let's suppose, now I don't have a lot of experience in giving on like gym में personal training मिलना, because I don't have that much experience in that. Yeah. But what I like, hypothetically speaking, तुम अपना word of mouth दे रहे हो, बात कर रहे हो, सिखा रहे हो फ्री में, like general training दे रहे हो, then you get one Hmm. client. Now then you get another client. Now जो 8 घंटा you are packed, jam packed. Now the thing is कि people already know कि यार तुम में कुछ दम है, you are the best trainer here. Now they will pay a premium for your service कि ना, actually समझो तुम्हारा like झगड़ा होना चाहिए तुम्हारे लिए कि ना, मुझे मुझे अमोक का, मुझे सौरभ का पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए. बिकॉज why? Because not because he is this, he is that. He has proved himself कि he is the best trainer there. और let's Yeah, suppose definitely. एक स्लॉट खाली है, और देन उधर झगड़ा होना चाहिए कि मेरा चार्जेस समझो 8,000 है, तो आई विल पे 10,000. I will ऐसा pay 10,000. Yeah. that should actually happen. Now, if that can only happen uh, when the trainers actually start helping other people. Approaching those people. Yeah. Genuinely approaching, matlab, you know, approaching is a very wrong word to use, because Yeah, yeah. approach मतलब ऐसा लग रहा है desperately जा रहे हो, ले लो पर्सनल ट्रेनिंग, ले लो Yeah. ले लो ले Okay. लो, दे दो मुझे. ऐसे वैसे if you go that way, like I'm over exaggerating again, but if you go Yeah. like पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए क्या, पर्सनल ट्रेनिंग लिया है क्या, you every time you ask this, तुमने ये किया क्या, वो किया क्या. When you do this, actually you are lowering your price, lowering your value. Price. Yeah, definitely. हाँ कि यार ये तो But trainer should डेस्परेट. never ask about his personal training directly clients that कि यार आप join करोगे क्या, मतलब नहीं है तेरे हाँ. पास में इसलिए तो मांग रहा है मुझे, ये एंड इम्पैक्ट एंड जाता है वहाँ पर. एंड ना और एक चीज होता है कि मैंने समझो जनरल ट्रेनिंग दिया, आई ट्रेन दैट गाय, आई मतलब आई हैव एक्चुअली हेल्प्ड पीपल टू स्क्वाट, लाइक उनको वो 5 किलो के डंबल से भी स्क्वाट नहीं कर पाते थे, 15 kgs का प्लेट, एंड दे हैव स्क्वाटेड फॉर reps. Actually I have done this, and with total depth. So this is a very impactful thing. But when you do that, you should never expect anything. You should just, you help them, thanks a lot, like get the feedback, how was it, did you Yeah. like it, and everything, and just then go away, like do your help someone else. Now यहाँ पे क्या होता है, many people, what do, they give the results instantly, because if you are following the right form and technique, if you are a good effective coach, so you get results very quickly. After that, अच्छा लगा, पर्सनल ट्रेनिंग लोगे क्या. And now when you try to Yeah. sell, Yeah. actually when you try to sell, now you are not you won't be able to sell him, because no one wants to be sold actually. अगर तुम मुझे कुछ Yes. बेचोगे Yes. ये वो, तो मुझे नहीं खरीदने का है. और रिवर्स साइकोलॉजी यूज करना चाहिए उस जगह पे, जहाँ Yes. पे लाइक व्हाट विल हैपन विद मी कि ना तुम मुझे बेचना चाहते हो कुछ प्रोडक्ट, लाइक लेट्स सपोज योर टी शर्ट, तो आई विल से नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पैसे रहेंगे तो भी मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी सोल्ड, आई डोंट वांट टू गिव Sold. इन. Yes. एंड जब ये होगा, what really people should do is, trainers should do is use the reverse psychology ki, okay, how was your feedback, okay great, okay meet you tomorrow hopefully.
and then go away, help someone else. So ना क्या होगा? He will कल, मतलब वो आपके तक, हाँ वो आप तक आएगा कि सर क्या है क्या हाँ वो तो नेक्स्ट है, आप आगे बढ़िए। पहली चीज तो वो खुश हो जाएगा, वो तो सरप्राइज हो जाएगा, अरे यार इसने तो मुझे इतना सब सिखाया, ही सेल्फलेसली जस्ट मेरे, हाँ चेंज्ड मी इन अ डे, और इसने मेरे मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में पूछा भी नहीं। अरे वाह, वो खुश हो जाएगा, ही विल एक्सपेक्ट कि कल भी मेरे को सिखाएगा। बट द थिंग इज कि ना, इफ यू आर इन अ जिम स्पेस, तुम उसको एवरीडे अटेंड नहीं कर पाओगे, जनरली स्पीकिंग। तो लेट्स सपोज तुमने आज, मैंने सौरभ को सिखाया, समझो तुम्हें मैंने डेडलिफ्ट करना सिखाया, तुम्हें 0 kg से मैंने 50 kg 60 kg तक डेडलिफ्ट पे कराया, 2 reps 3 reps कराया, and then I took your feedback, how was the session, how did you like it, share your feedback with people and everything, and bye bye, like I have work, चलो वो चला जाएगा, तुम चले जाओगे घर पे। नेक्स्ट डे जब भी तुम आओगे, मैं किसी और को सिखा रहा रहूंगा, बिकॉज मैं जनरल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ही नहीं, यू आर नॉट माई पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट ना एक्चुअली, सो व्हाई यस ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, आई विल गो समवेयर एल्स एंड आई ट्रेन देम। उनको जो चीज तुम्हारे साथ आज किया, उनके साथ मैं कल करूंगा, कल एंड दूसरे क्लाइंट के साथ नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे, सो दिस थिंग्स keeps on happening. और what happens is कि ना, अगर सौरभ लाइक यू इन दिस केस, तुम्हें बहुत इम्पैक्ट लगा, यू आर लाइक कि ना, अरे यार इसने एक दिन में मुझे इतना सिखा दिया, तो ये मैं इससे पर्सनल ट्रेनिंग लूंगा तो कहाँ पे जा सकता क्या हूँ, क्या, हाँ क्या पोटेंशियल हो सकता है, एंड देन यू विल थिंक अबाउट कि ना मैं पर्सनल ट्रेनिंग लूँ कि नहीं, देन यू विल लिटरली अप्रोच द पीपल एट द रिसेप्शन और समथिंग, एंड यू विल से कि ना मुझे पर्सनल ट्रेनिंग अमोक से चाहिए, वो ट्रेनर है ना वो, यस उससे चाहिए। And that is what should happen hypothetically. I don't know if it happens, or if it, like again it's a long process, हाँ, ऐसा नहीं है कि ना एक दिन कर लिया दूसरे दिन क्लाइंट मिल जाता है, एक दिन के लिए मिल गया, and क्लाइंट भी I, आपको ऑब्जर्व करता है। हाँ, and I've learned this the hard way, because I used to be नहीं, I am again sometimes, I try to sell, and the thing is कि I cannot sell if I am trying to sell directly. Selling is like, selling should not happen directly, यस it should just happen passively, right? यस So now what I, let's suppose मैं Instagram पे जो भी कंटेंट डालता हूँ, sometimes I ask कि ना, strategy call जो मैं करता हूँ, which is my funnel, so I ask them to get in, but the other times I'm literally giving away knowledge for free and not expecting anything, in the sense कि मैं बोलता नहीं कि ना, मेरा मेरा न्यूट्रिशन का कोर्स बाय कर लो, लाइक आई विल टेल दिस इन अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज लाइक वेरी रेयरली, बिकॉज आई हैव टू डू दैट आल्सो। बट वीडियो में, यस लाइक इफ आई आस्क यू दिस कि ना, तुमने कभी मेरे वीडियो में देखा है कि आई एम सेइंग कि ना बाय माय कोर्स? नो नहीं नहीं ना। नहीं So actually, that is what should happen. I'm again trying to do यस that thing, trying to implement that. And then what वही है। again? और डेफिनेटली लोग एक बार अगर आपसे फ्री ले रहे हैं ना, तो भले वो क्लाइंट बाद में मतलब आपसे क्विटिंग ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा ना, तो जिम में वो कहीं ना कहीं कनेक्शंस बनाने वाला है दूसरे क्लाइंट से, तो वो दूसरे क्लाइंट को तो बोलेगा कि यार अगर तू पीटी ज्वाइन करने वाला है तो डेफिनेटली तू मेरा सजेशन सुन, तू हाँ, ये पर्टिकुलर still. ट्रेनर से ही पीटी लेना। ये हो जाता है, रेफरल्स रिव्यूज अपने वो, मैं बोल रहा हूँ वही फिर से हाँ, कि it चलते never फिरते goes मैदान to waste. It never goes to waste, na. True, true. Or like even if you are selling, trying to on a, when you are on a strategy call for me, मैं जो करता हूँ ना, funnel है मेरा, so I Yes. like, ये मैंने बहुत बार बोला है एक्चुअली कि I don't try to sell, I try to understand कि तुम क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा क्या solution होना चाहिए, and then I give you the solution. Then I literally ask you कि do you want to buy this, like because then क्योंकि solution तो दे चुका हूँ, ये खाना, ये खाओ, वो खाओ, फिर मैं बोलता हूँ कि ना I also have a program, do you want to get into that? तो अभी जो बंदे ने 1 घंटा भर मेरी बात सुनी है, उसने ज्ञान ले लिया है इतना, तो that also happens कि ना उनमें भी थोड़ा रहता है कि अरे
इतना मुझे दिया तो let's see what he has to offer. Then if the offer is correct for them, then they take it. Then they become your client. Selling, oh, like I have read like not a lot, but some books on this topic. So yeah, To Sell is Human, एक book है by Yes. Daniel H. Pink. You should read that. If you have read it, then it's Yes. great. पढ़ा है क्या? नहीं नहीं नहीं, पढ़ूंगा डेफिनेटली. हाँ. And then carry on. तुम बोल रहे थे ना ये टॉपिक हो गया. Trainers should do this. And then what should be the next thing for the gym? Like बस आप अगर इतना भी अगर कर लेते हो ना, तो वो जिम चला, मतलब जनरली क्या है, हम आपको ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है वो चीज को. जितना आप सिंपल रखोगे ना, मतलब मैंने तो वो नोटिस किया, मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, क्योंकि मुझे ना पहले जिम चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था. जो है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, जो कुछ भी है ना, वो आपको सिचुएशन सब एक्सप्लेन करवा देती है. मतलब सिर्फ मार्केट को स्टडी करो, क्लाइंट्स क्या रिव्यूज दे रहे वो आप स्टडी करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स ही आपको आकर बोलते हैं, सर आपके इधर ना ये चीज छूट रही है, मतलब दूसरे लोग ये कर रहे हैं पर आपके पास में ये चीज छूट जा रही है. सो आपको उसके ऊपर काम करना, मतलब ऐसा नहीं, क्लाइंट्स तो बहुत सी चीजें बोलते हैं, पर क्या कौन सी सब चीज की आपको you फोकस have to करना है. understand यस. तो what will be वो भी right. अगर आप करते हो ना, तो आप टॉप नॉच जिम बन सकते हो आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं. और ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं तो बोलना चाहता हूँ ना, कंसिस्टेंसी और पेशेंस. ये दो चीजें आपको रखनी ही पड़ती है कोई भी बिजनेस में. अभी ये पैंडेमिक का सब चल रहा है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो बहुत से जिम ओनर्स को ऐसा लगा कि यार फिटनेस इंडस्ट्री का तो अभी फ्यूचर ही खत्म हो गया है. सो अभी तो चालू होगा ही नहीं जिम्स वगैरह, ये करके बहुत से लोगों ने सेल आउट कर दिया. सो ये नहीं है यार. तुम मतलब अगर तुम अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम फ्यूचर में कैसे क्या सर्वाइव करोगे. सो True, ये true. है. और ये है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है. नहीं, आप अगर जिम्स बंद है तो आप बाहर जाओ, लोगों तक पहुंचो, आप लोगों को ग्रुप एक्टिविटीज में इनवाइट करो, कुछ ना कुछ करके लोगों को कनेक्टेड रखो खुद से. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिंपल वर्ड्स में, क्लाइंट आपका क्लाइंट नहीं रहना चाहिए, वो आपके जिम का फैन बन जाना चाहिए. तो वो कभी भी जिम को छोड़ेगा नहीं और कनेक्टेड ही रहेगा. सो ये एक इम्पोर्टेंट है. कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज्यादा लगता है, कोई भी बिजनेस हो, नॉट ओनली इन जिम, बट पता चलने में टाइम लगेगा, हर एक चीज को पता चलने में टाइम लगेगा. अभी आपके सिटी में भी आप देख लो, जितने भी जिम्स हो गए, आपको पता है सबके नाम, सबके नाम पता है आपको जिम्स के? No. सब जिम्स नहीं, डेफिनेटली नहीं. मुझे भी दुनिया में पूरे जिम्स के नाम नहीं पता है अभी तक. तो वो वही होता है कि मतलब जब ना आप घूमोगे, मतलब आपको पूरे आपके सिटी में घूमने के लिए आप 3 महीने में तो एक बार तो आप पूरी सिटी में घूम चुके होते हो. सो आपको उतना टाइम देना पड़ता है लोगों को आपको समझने में, या आपके बारे में रिव्यूज आने में. तो वो एक बार हो गया ना, तो डेफिनेटली आप फेमस होना ही होना है. रीजन, मैंने और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. क्या होता है ना, जिम ओनर्स फिलहाल क्या कर रहे हैं कि आपने नया नया जिम चालू किया, आपको पहले नया जिम है इसकी वजह से लोग आते हैं, फिर एक आध महीना हो जाता है, उसके बाद में फिर आपको लगता है यार अभी क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, इंक्वायरीज नहीं आ रहे हैं. तो आप क्या करते हो कि अमुक आप आ जाओ मेरे जिम में, और आप आपके साथ में 5 लोगों को लेकर आना, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, और उनको भी डिस्काउंट अच्छा खासा प्रोवाइड करूंगा. सो उसमें क्या होता है ना, आप आपके फ्रेंड्स को लेकर आओगे, पर अभी आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये आपको तो आपके फ्रेंड्स अच्छे ही लगने वाले हैं, पर बाकी का जो एनवायरनमेंट है ना जिम मेंबर्स का, जिम क्लाइंट्स के साथ में दूसरा जो जिम का सराउंडिंग है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है पूरा. मतलब उसके अंदर लेडीज क्लाइंट्स इनसिक्योर हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट. सो दूसरा, और मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि जिम में गर्दी गर्दी इतनी बढ़ जाती है, मतलब मेरा देख के अभी सूर्य जिम आ गया है, तो अभी अपना क्या होगा बोल के ऐसा लोगों को थोड़ा लगना चालू हो गया. तो मेरे आसपास के जिम्स ने डिस्काउंट इतना जोरदार देना चालू किया कि जो मेरी फीस है उससे आधे में उन्होंने एडमिशन भर दिए, पूरे पूरी जिम फुल. और उनका एक्सपीरियंस ऐसा है अभी कि एक कोई अगर वर्कआउट कर रहा है, तो मेरे पास में क्लाइंट आके बोलते हैं, सर हम वहां पर फिर लाइन लाइन पुल में डाउन खड़े अगर कर रहे हैं ना, तो लाइन 30 से में ज्यादा खड़े लोग बोलते हैं चल रहे हैं, उठ, हो गया क्या तेरा. मतलब ये लिटरली हो रहा है अभी जिम्स में. मतलब मैंने जस्ट वेट एंड वॉच इतना ही किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया 6 महीने में से. तो 4 महीने लॉकडाउन में गए. वो भी चीज अलग है कि मैंने जिम बंद नहीं रखा था, मैं अलग से चालू रखा था. मैंने भले थोड़े क्लाइंट्स आए पर चालू रखा था. सो
ये होता है। और अभी उन्होंने लिटरली बैनर्स लगाने भी बंद कर दिए है कि हमको अभी गर्दी वैसी नहीं चाहिए बोल के। सब जिम के ओनर्स, ट्रेनर्स, मैनेजर्स और थोड़े बहुत क्लाइंट्स सब जिम के प्रोफाइल को बार बार विजिट करते रहते कि यार सूर्या जिम वाले कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, सो इनका प्रोफाइल चेक करो, कुछ ना कुछ मतलब ये ट्रेकिंग को लेकर जाते हैं, अच्छा चलो हम भी चालू करते हैं। तो मैंने वही बोला है मेरे मतलब बाकी के ट्रेनर को कैसा होता है ना, सर अपन ने ये नया चीज लाया और इन्होंने हमारा कॉपी कर लिया। मैं उन्हें वही बोलता कि यार नहीं कुछ तो भी तो उसके लिए तो अपन को नोटिस कर रहे हैं ना वो, मतलब वो हमें सही कुछ बात भी है। कर ऐसा ही देखने वाले हैं। तो हाँ इसकी वजह से हाँ, मैं वो एंजॉय करता हूँ असली में प्रोसेस को, क्योंकि सही सही। वो क्या करेंगे पहले हमने करने के बाद में वो कॉपी करने वाले, नया तो कुछ ला नहीं पाएंगे। सो दिस इज द थिंग कि मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है, फिर क्लाइंट्स भी यू आके आर रिव्यू द देते सर। लीडर्स एक्चुअली, या ये या चीज दिस इज द थिंग, मतलब वो बोलते हैं ना कि आईफोन जो है वो कीमत है। फिक्स करता है और फिर बाकी के उसके हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं जो कीमत होती है। हाँ तो वो हाँ। टाइप में फील आना चालू हुआ है अभी लिटरली। तो मैंने तो ट्रेनर्स को बोल दिया कितना भी लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिस्काउंट किसी को भी नहीं देना, जिसे सच में जरूरत होगी अपन जेन्युइनली कर रहे हैं हमें पता है ना, तो बस आपको हम्म। क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, बस आराम ट्रू से लोग ट्रू। आएंगे। अब धुलिया जो है ना, धुलिया 9 to 10 किलोमीटर के इसमें खत्म हो जाता है, मतलब बाद में ग्रामीण परिसर चालू हो जाता है यहाँ से। तो मेरे पास में ऐसे भी क्लाइंट्स है कि जो डेली जॉब उनका होता है वो कंप्लीट करते हैं या कोई बिजनेसमैन है वो कंप्लीट करते हैं, 9 किलोमीटर वो मेरे पास में आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। और ऐसा नहीं कि पहले के क्लाइंट्स हैं 10 साल वाले क्लाइंट्स, वो नहीं, सब नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो वही बोलते सर हमने आपके बारे में वही सुना है कि आप पर्सनली सबके पास में ध्यान देते हो और कहीं से भी हो आपके पास में रिजल्ट आता है सामने वाले को। इसलिए आपका 9 किलोमीटर आप बोल रहे हो, अगर आपका 18 किलोमीटर भी होता है ना तो भी हम आपके पास में ट्रैवल करके आते हैं। आई हैव वन कपल, दे ट्रैवल 34 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस अनदर सिटी एंड दे कम फॉर ट्रेनिंग एट माय माय प्लेस। गॉड। सो ये भी है कि मतलब होता है। तो ये जब एग्जांपल आपके सामने होते हैं ना अमोल, तो आपको कोई दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप इनसे बात करो क्लाइंट से, आप आराम से मोटिवेटेड हो जाते हो। सो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। एंड क्वालिटी कभी मेंटेन कर नहीं पाओगे आप जब भी आप प्राइस ड्रॉप करोगे, बिकॉज देन यस यस डेफिनेटली। प्राइस ड्रॉप करोगे तो आप एक्चुअली आपको लाइक लेट सपोज मेरे जिम का मेंबरशिप समझो, आपके जिम का मेंबरशिप कितना है इफ आई यस मे आस्क, कितना रहेगा? मैं 15,000 ईयरली फीस है। हाँ, सो दैट इज द लाइक अगेन सीइंग टू द डेमोग्राफिक कि दूल्हे के लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं एवरीथिंग, सो इज यस एक्चुअली गुड प्राइस फॉर द दिस योर जिम। सो तुमने अगर समझो 15 से ना 9,000 कर दिया फ्लैश सेल कि जस्ट बिकॉज यू नो, अरे यार यू गॉट पैनिक, मार्क कुछ आ नहीं रहा है, पीपल आर नॉट कमिंग टू द मेंबर्स भरने रहे रेंट के से, इफ यू डू दैट देन द थिंग इज यू डू 9,000, फिर 9,000 के लिए 15,000 वाली पब्लिक नहीं आएगी। नाइन बराबर। थाउजेंड के लिए जो जो ना जो एक्चुअल में 8,000 7,000 अफोर्ड कर पाते हैं ना, वो जोड़ेंगे पैसे और वो आएंगे। यस And यस then you can't expect these guys to pay you personal training, like यस to get डेफिनेटली personal डेफिनेटली दे training. कांट। And it's और not कैसा होता है ना, जब आपके पास में क्लाइंट्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स वगैरह है या हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स जो होते हैं, वो आपके पास में कभी कंप्लेन करने नहीं आते कि सर हमें इससे डिस्टरबेंस हो रहा है या ये चीज से, वो डायरेक्टली खुद बाजू में निकल जाता है, मतलब वो जिम छोड़ देंगे और आपको बोलेंगे सर मेरा दूसरा कुछ तो भी काम है मैं नहीं आ सकता हूँ जिम में बोल के। ये हाँ कंप्लेन करने कभी भी नहीं आते सामने, वो आपको समझना पड़ता है कि यार दे आर अवॉइडिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस थिंग, सो आपको ही you वो have चीज to को ask दूर for करना it. पड़ता है। यस, अभी मेरे पास में ऐसे भी लोग हैं जो MIDC में वर्क करते हैं और तो भी उन्होंने फीस यहाँ पर पे क्यों है, रीजन क्या है कि वो बोलते हैं सर भले हम कम कमाए पर तो भी हम अच्छे चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम हमें अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा और थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा। मार्केट आप बोल रहे हो कि कम हो गया है, लोगों के पास में पैसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने पैसे स्टोर करके रखे हुए हैं फ्यूचर के लिए और वो हेल्थ से रिलेटेड चीजें करने ही वाले हैं फ्यूचर में। हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही ना, अभी एक टैग तो बहुत अच्छा फेमस हो गया, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्टर। तो जिम तो अभी सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर हो गया है डायरेक्टली। हाँ
बराबर बराबर एक्चुअली लाइक people are going to invest in health अभी because you know it's high time अभी तो करना ही पड़ेगा यस जो लोग इन्हें सोचा नहीं था वो लोग भी कर रहे हैं like you know people have went through a lot of things very bad circumstances also जिनमें they have got you know उनको धक्का actually पड़ गया कि ना I have to focus on my health और अभी if you know this is not something कि एक बार हुआ है like this pandemic and everything this यस, दिस might कैन हैपन. happen again या because nature is like that, right? You can get a viral like next यस pandemic कब आएगा we don't know. Many things can happen. Anything can happen. This is life. So like the best bet against all these like viruses and everything is your own body's immunity, and you can build that up by you know eating the correct food, having a right lifestyle, and you know moving your body. And again, it's not like you know gym में जाओ body बनाओ. It is just you know हाँ. go to the gym, move, do stuff like lift stuff which will challenge your body and move. And with that जब भी तुम move करोगे तुमको खुद से ही लगता है कि अरे अभी मेरे को डाइट पे भी ध्यान देना है. And then you focus बिकॉज on वो your ट्रायल्स रिजल्ट दिखने चालू हो गए ना, तो वो साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है पूरा. एंड अगर मैं समझो मैं ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ तो मैं डाइट पे तो फोकस करूंगा ही ना क्योंकि आई वांट गुड रिजल्ट्स यस. राइट एंड लाइक आई सॉ योर इंस्टाग्राम एक्चुअली सो ये जो है सीन्स बाय एवलॉन यस. so what is this actually like I want to know because you are a speaker at that thing you have said it ओके. सीन्स बाय एवलॉन एक ऐप है जिससे आपको क्लब हाउस पता है ना, तो हाँ सेम क्लब हाउस के जैसा ही है वो, पर इंडियन है. तो जैसे आपको वरुण माया पता होगा या शशांक उडुपा बोल के है, सो हाँ दे आर द फाउंडर ऑफ दिस ऐप. और राज शमानी इज आल्सो इन्वेस्टेड इन इट. सो ये ऐप के अंदर भी वही सब चीजें होती है, बट सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की जो मुझे अच्छी लगी इसके अंदर कि उसके अंदर रिकमेंडेशंस लगती है, मतलब आप डायरेक्टली उसके अंदर नहीं एंटर कर पाते हो. हम्म एवलॉन पे वैसा नहीं है. और एवलॉन पे ना आपको जो रूम्स मिलेंगे या जो है किसी का पर्सनल रूम, तो उसके अंदर आप अगर एंट्री करते हो तो आपको एक तो हिंदी या फिर मतलब इंडियन नीच से आप अगर बिलोंग करते हो तो आपको लोकल लैंग्वेजेस वगैरह वो भी मिल जाती है. एज कम्पेयर टू क्लब हाउस में आपको बहुत से इसके अंदर ना आपको पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है उसके अंदर, मतलब हम्म इट्स अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग. ओके. सो एवलॉन पे वो नहीं है. तो मैं एवलॉन पे क्रिएटिव हूँ, वहां पर आपको आपका रूम क्रिएट करना होता है और आपके जो कुछ भी सेशंस है आप वहां पर कंडक्ट कर पाते हो. और वहां पर आपको कमेंट्स वगैरह वो बहुत सी चीजें आप मतलब है क्लब हाउस के जैसा ही है, पर कुछ चीजें I'll नहीं है get एवलॉन के अंदर. यस. I'll try it out actually तो यस. इसके बाद I have downloaded kept it for downloading actually so वो कर लूंगा मैं and like tell me about your public speaking experience like the thing is I know some things about you कि ना you have spoken in front of people about fitness nutrition and all the related things lifestyle related things and you know the thing is I also want to do these kinds of things like how to set up an event for yourself or how do you get invited to these things ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो क्लाइंट्स है ना वो ये चीजें आपके लिए प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल वो जहाँ पर रह रहे हैं अगर उनके सोसाइटी में कुछ है तो आपको वो इनवाइट कर सकता है. उसके बाद में जो इवेंट्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन्स डे वगैरह जो होता है, सो उसके अंदर बहुत सी जगह ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ इवेंट रखते ही है. ऐसे कुछ कुछ चीजें जैसे वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे या वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, वो हिसाब से तो उसके बारे में आपको पहले सर्च करना पड़ता है. और ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो ये चीजें कंडक्ट करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे धुलिया में अभी मेरा जिसके साथ में टाइप्स है रोटरी क्लब ऑफ धुले, बाद में रोटरा क्लब, लायंस क्लब वगैरह. सो ये जो है ना, सो ये एक्टिविटीज के अंदर एक्टिव होते हैं बहुत से, मतलब ये एक्टिव क्लब्स है. तो अभी क्या है ना, आपको सिर्फ एक ही इवेंट ऐसा कंडक्ट करना होता है हमो कि जिसके अंदर ना वो सक्सेसफुल जाए आपका इवेंट. नेक्स्ट टाइम से आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती. लोग आप तक पहुंचते कि सर डू आई हैव टाइम, वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस इवेंट एट दिस प्लेस बोल के. सो यही होता है कि और
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है, मैंने ऑनलाइन इवेंट्स भी कंडक्ट किए हुए हैं। सो उसके अंदर पहले फर्स्ट इवेंट का मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था ना, मुझसे गलती ऐसी हो गई थी कि मैं ना थोड़ा सा लिमिटेड फॉर्म में बात कर रहा था कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स ये होता है, उसके अंदर से ये 4 किलो कैलोरीज, प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज, फैट्स में 9 किलो कैलोरीज, मतलब वो जैसा सा एक पैराग्राफ पढ़ के बताने के लेक्चर जैसा दे रहे होता है हैं। ना। हाँ, तो उसके अंदर लोग बोर रहते हैं। फिर मैंने बाद में स्टडी किया और नेक्स्ट डे ही मैंने कैसा सर से बात की, सर आई वांट टू स्पीक विद यू। सो मीटिंग वगैरह हुआ, तो मैंने सर से बताया, सर ऐसे ऐसी चीज हो रही थी, लोग कनेक्ट तो हो रहे थे पर कई लोगों को बोर भी लग रहा था, मुझे ना फेसिंग पे से दिख रहा था सामने। तो सर ने मुझे समझाया, सब बातें वगैरह हुई। मैंने नेक्स्ट इवेंट में क्या किया ना कि लोगों को मतलब इमेजिन किया कि अगर मैं वो चेयर पे बैठा हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि स्पीकर ने क्या बोलना चाहिए। जैसे डे टू डे लाइफ की चीज है, मैंने अगर आपको बोला कि अमोक देखो आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने, फैट्स खाने, ये अगर उसकी जगह पर मैंने आपको अगर ऐसा बोला कि सॉरी वो पहला वाला सेंटेंस नहीं, तो मैंने अगर आपको बोला सी अमोक, अगर मैं आपको बटर चिकन देता हूँ या फिर पनीर बटर मसाला देता हूँ तो आपको कैसा लगेगा खा के। ये जब मैं पूछता हूँ तो मैं अपना इमेजिनेशन में चला जाता हूँ कि यार सच में अगर मेरे सामने बटर चिकन है तो मैं पार्क क्या आता है, करूंगा। पार्क आता है। हाँ, वो हो जाता है। और उसकी जगह पर अगर मैं आपको बोला अमुक फैटी प्रोटीन आपको खाना है और आपको फैट्स और प्रोटीन खाना है, तो आपको लगे यार हाँ प्रोटीन होगा कुछ, तभी फैट्स होगा कुछ, आप रिलेट नहीं कर पाते हो। मतलब आप वो चीजें बोलो जो उन्हें सुननी है और वो फॉर्म में आप आपकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाओ। पहले हम्म। स्टार्टिंग तो आपको सबसे पहले उनकी जो कुछ भी मिस्टेक्स हो रही है, जैसे पहले डीमोटिव, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, तो पहले उनको डीमोटिवेट किया, यार अभी तो हमारे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा उन्हें लगना चाहिए। फिर उन्हें बताओ कि नहीं, ये तो स्टार्टिंग है, आप अभी भी आपकी लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से आप इम्प्रूव कर पाओगे। सो ये जब उन्हें लगना चालू हो जाएगा ना, सो दे कैन कनेक्ट विथ यू। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फैट है या ओबीज है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स एंड देन यू कैन प्रोवाइड देम सॉल्यूशन सो दैट दे कैन कनेक्ट विथ यू। ये हाँ। सबसे बेस्ट फंड है उसमें। और डे टू डे लाइफ की चीजें बहुत से आप शेयर कर सकते हो, आप आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करो। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये आदमी तो बहुत सीधा साधा है, इसके लाइफ में तो प्रवचन कुछ दे भी रहे नहीं हैं हुआ, वो, ऐसा नहीं लगना ऐसा नहीं चाहिए। यस, लगना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका देखा हुआ है कि आपने आपका खुद का भी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा किया हुआ है। आप पहले ओबिस थे, उसके बाद में आपने अच्छा बॉडी कंपोजिशन अचीव किया। सो ये स्टोरीज आप उनके साथ में शेयर करो। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार वो क्या बोलेंगे, आप भी तो कोच हो पर आप भी तो फाइट थे, ऐसा नहीं। आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज भी उनके साथ में आप जब शेयर करोगे ना, तब उन्हें लगेगा नहीं मेरी स्टोरीज से कुछ ना कुछ मैच हो रहा है, मतलब दिस पर्सन कैन हेल्प मी इन अ बेटर वे। सो ये उन्हें लगना चाहिए। हम्म। तो एंड ऐसा मैं कनेक्ट करते गया और फिर लोगों को वो पसंद आया। मैं लग भी बोल सकता हूँ कि लोगों को पसंद आया। और एक ऐसी चीज है कि मुझे लैंग्वेजेस सीखना ये पहले से बहुत पसंद था। मतलब मुझे गुजराती लिखना पढ़ना आती है। उसके बाद मैं हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, हमारी यहाँ की एक रीजनल लैंग्वेज है अहिरानी बोल के, वो आती है। और मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ में भी आती है। तो ये था कि कैसा है ना, आप जो कुछ भी क्लाइंट्स के साथ में बात कर रहे हो, तो आप उनके उनके लैंग्वेज में आप जब कनेक्ट करते हो ना, तो उन्हें ऐसा लगता है नहीं ये अपना आदमी है, अपना बनता है, मतलब कुछ तो भी बता रहा है सच में। सो ये चीजें होती है। तो आपको ना वो भी आना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है। नहीं तो आप जा रहे हो और सीधा उनसे एक ही लैंग्वेज में और उनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो बराबर। दे कैन कनेक्ट विद यू। आपको पहले उनकी मेंटेलिटी समझ लेनी पड़ेगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। हम्म। मतलब लिटरल मैंने देखा हुआ है कि एक वुमेन्स डे का प्रोग्राम था और आई वाज स्पीकिंग और सामने से ना सैंडविच उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब वो प्रोग्राम होता है ना थोड़ा हाई क्लास प्रोग्राम, तो उसके अंदर सैंडविच वगैरह उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो दो तीन लेडीज ने मतलब मेरी बात आधी हुई और दे वर ईटिंग और नीचे उन्होंने और ओपन किया तो और एक सैंडविच था नीचे, तो उन्होंने वो रख दिया। नहीं नहीं सर बता रहे हैं ना अभी सैंडविच आज से बंद। तो वो मुझे लगा कि यार सच में अभी कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ। और देयर वर सम पीपल की वो खा रहे थे, वो बोल रहे थे ठीक है तुझे नहीं खाना मुझे दे दे। So, ऐसे भी थे लोग वहां पर। दिस इज द थिंग कि आपको ना बाकी लोगों को ध्यान नहीं देना है, जो आपको सुन रहे हैं ना, एक भी आदमी अगर आपको सुन रहा है ठीक से, तो आपको आपका फुल उसको मतलब एक्सप्लेन करने में लगा देना चाहिए। बराबर। एंड हाउ लाइक यू
तुमने स्टार्टिंग में अप्रोच क्या रहेगा ना इवेंट्स के लिए मुझे हाँ, लाइक एक इवेंट के लिए मैंने अप्रोच किया था, पहले एक इवेंट में, मतलब माय ब्रदर्स फ्रेंड एंड ही इज असिस्टेंट चेयरमैन इन रोटरी क्लब। सो मैं जस्ट मतलब एक काम की वजह से गया था, और मुझे आइडिया है कि यार ये भैया है तो इन्हें एक बार पूछ लेता हूँ कि आप कुछ करने वाले हो क्या। मैंने जस्ट पूछा उन्हें, तो बोले हाँ करने का प्लान तो कर रहे हैं, पर हमें कोई ट्रेनर नहीं मिल रहा है वो कंडक्ट करने के लिए। बोला, अरे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा बोल के अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहो। और फिर तब से जो चालू हुआ ना, तो फिर वो चल रहा है पूरा सीरीज। फिर इंटरनेशनल योगा डे है, उससे रिलेटेड आप बहुत सी एक्टिविटीज ले सकते हो। अभी लोगों को क्या लगता है, ये मिथ है कि योगा लोग ना एक्सरसाइज समझ के बैठते हैं। एज वी नो कि हाँ योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ओवरऑल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स उन्हें पूरी तरह से नहीं पता होता है। तो मैंने योगा के माध्यम से लोगों को जमा किया, मतलब एक जगह पर लाया, और उसके बाद में फिर पहले योगा कराया, मतलब वो लोग खुश हो गए। और बाद में जब मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया तब उन्हें पता चला, हाँ ओके आप जो बोल रहे हो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब योगा भी करना है और वेट ट्रेनिंग भी करना है। सो ये है, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें मैं नहीं बुलाऊंगा, नहीं। उन्हें उन्हें जो चाहिए वो देख के बुलाओ, और बाद में फिर उन्हें बताओ कि आपका पॉइंट क्या है। आप डायरेक्टली आपका पॉइंट रखेंगे तो कोई आने नहीं वाला मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, आप पिज्जा खाने बुला रहे हो, और पिज्जा खाने के बाद में आप उन्हें बोलोगे कि ये जो बेस बना था ना, ये आमंड फ्लावर से बना था। ये एक एग्जांपल इसके अंदर है। अरे दिस इज द राइट थिंग। राइट गॉट इट yeah so now like I understand कि ना like I am also trying to approach people to अभी तो सब online चालू है so I also did some talks. हम्म। I did paid talks actually, but that doesn't work out really well because जब भी लोगों को मालूम यस। नहीं है तो the people are not going to pay you. So like for the viewers, this is for the viewers. Is there a potential in public speaking like to get paid for speaking? Yes, definitely. But at first, you have to do it for free. Then, when people will understand your value, and at that time they will be ready to pay you whatever you will charge for that. So, yes, definitely, it has a potential. You can do that. And are you getting paid to do it? या फिर you are just hustling right now? Uh, I'm not getting paid for it. By the way, मुझे पर्सनली पेड उसके अंदर होना, मतलब अगर मैं ट्राई करूँ तो या आई कैन डेफिनेटली डू इट। बट मुझे पेड नहीं करना है। रीजन बिहाइंड दिस इज कि मेरा सेटअप न्यू है, तो मुझे जस्ट एक लीड मैग्नेट टाइप ऑफ मैं उसे यूज कर रहा हूँ। तो मैं हाँ, अगर पे that is करना स्टार्ट actually करूंगा that. ना तो कुछ लिमिटेशंस आ जाएगी उसके अंदर। ये And the thing is सो कि ना how मुझे I ज्यादा see से ज्यादा लोगों को लाना ही है। true हम्म। because the way how I see it like again मैंने pay का क्यों I was talking it because the thing is many people have that notion. I also had that कि ना पैसे हाँ मिलेंगे to speak हाँ हाँ right. एक घंटा बक बक करके जा फिर पैसे मिलेंगे दस हाँ हजार हाँ इतना हजार ही है बट द थिंग इज कि यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी लेट सपोज तुमने स्पीच दिया यहाँ पे 100 लोग थे स्पीच पे कभी तुमने 100 लोग के लाइक फॉर मी मैंने कभी 100 लोग के दिया है एक्चुअल में बट वो ऐसे फिटनेस के ऊपर नहीं हो तो लाइक आई हैव गिवन स्पीचेस इन लाइक स्कूल और अदर कॉम्पिटिशन फुटबॉल का कुछ कॉम्पिटिशन था तो ओपनिंग सेरेमनी एंड ऑल दैट तभी दिया है that should not actually count as speeches and everything. हाँ So like it should count. It's a good experience. But when you are actually you have a product to sell and you are trying to communicate the message, not the selling. Okay, you are trying to communicate the यस message, and you have 100 people in front of you. That's a win-win. Even if you get 0 rupees, and या the only thing you should make sure of kina they do the event damn good and you actually you are treated as a chief guest or something like that you are treated with respect ऐसा नहीं कि फ्री में कर रहा है मतलब ऐसे लोगों को लगना चाहिए you are getting paid a bomb यस यस। right नहीं अमुक क्या होता है ना कि आप देखो, एक दो सिनारियोज इमेजिन करो। एक सिनारियो में आप अगर एक पेड इसके अंदर जा रहे हो और अगर आपके पास में 20 ही रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं आपके सेमिनार के लिए, और एक इसके अंदर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो और आपके पास में 100 एंक्वायरीज आ रही है, उसके अंदर 100 लोग रहने वाले हैं, तो hmm. इमेजिन करो ये 120 में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, मतलब आपको 10,000 तो मिल जाएंगे पहले इसमें, पर अगर उसमें से आपको 3 क्लाइंट्स मिलेंगे
पर ये 100 में से आपको कितने क्लाइंट्स मिल सकते हैं, मतलब वो रेगुलर बेसिस में आपका मनी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। या मेरे हिसाब से अगर देखने गए तो मुझे 100 लोगों में से कितने क्लाइंट्स मिल सकते हैं, सो वो मैं सोचता हूँ इसके अंदर। ये एज कम्पेयर टू 20 अगर मैं पेड वाला रखता हूँ तो वो 20 ज्वाइन नहीं करने वाले इतना ज्यादा, पर 100 लोग अगर करूंगा तो वो 100 उनके फ्रेंड्स को बोलेंगे, एंड फैमिली मेंबर्स को बोलेंगे। बराबर। एंड ये जो तुम बोल रहे हो, लाइक यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप योर ओन इवेंट, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग एट समवन एल्सेस इवेंट, वो तो बहुत अलग डिफरेंट ही है, एनिमल है बेसिकली। क्योंकि तुम, अगर मैंने खुद का इवेंट बनाया, मैंने पेड रखा या फिर फ्री रखा, एक्चुअली इंस्टाग्राम लाइव करे तो वो भी एक फ्री वाला ही है, फ्री हाँ स्पीकिंग। बट द थिंग इज नॉट, पीपल डोंट गिव इट दैट मच अटेंशन। व्हाई? बिकॉज तुम्हारे ही फॉलोअर देख रहे हैं, लाइक फॉर देम यू, हाँ वही, तुम रोज के हो। एक सेम नीच से बिलोंग करते हो आप, उसकी वजह से। हाँ, तुम एक्चुअली तुम रोज का फेस दिखता है उनको अभी, बट इन दिस फॉर्मेट लाइक दिस, योर पीपल विल सी इट, योर पीपल वोंट नो मी, that gives me opportunity to make an impact on them. यस डेफिनेटली। I am tapping into new audiences, and with that said, if I do this at a brick and mortar place, मतलब एक रियल एस्टेट में करूँ जहाँ पे इवेंट हो रियलिस्टिक, वहाँ पे ना 20 लोग भी आए ना, the fact that I'm speaking over there, standing there wearing my t-shirt of my company, and having a mic in my hand and talking, answering doubts and everything, that is a different experience. And with that said, it gives a different impact on the यस डेफिनेटली। receiver. Super. आप जब लाइव सेमिनार वगैरह जब लेते हो ना, मतलब मुझे अगर पूछोगे तो बेस्ट फीलिंग होती है वो, कि एक लोग आपके सामने और सुन रहे हैं आपको। ऑनलाइन है ठीक है, अपडेटेड वर्जन है, अगर लाइव हाँ, नहीं कर पा अभी रहा तो इट्स अ पेंडिंग नीड। में। या हाँ, पर लाइव को आप तो मतलब उससे कंपेयर नहीं कर पाओगे, वो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, आपको वो एक्सपीरियंस ही अलग आता है उसके अंदर। hmm. To feel the euphoria actually, हेलो। right? Hold on. वही मैं बोल रहा था कि इट इज लाइक अ डिफरेंट फीलिंग की ना, फ्रंट ऑफ द पीपल व्हेन यू आर टॉकिंग, यस। तो वो अलग चीज है। एंड या यू आर आल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट? जो तुमने अभी बोला, क्या है नाम प्लेटफॉर्म का? सीन्स, सीन्स बाय एवलॉन, या। सीन्स बाय एवलॉन, या सीन्स, लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ऐप आई गेस। उसको मैंने फॉलो कर दिया है अभी, आई डाउनलोड इट एक्चुअली। सो नहीं, I will do one thing. I'll send you a link so you can download that app from that link so that मेरा भी उसके अंदर थोड़ा सा ये हो जाएगा। यस। Suggestions, yeah. I'll send it. एंड ऑल्सो, जो तुम लाइक यू ऑल्सो डू इवेंट्स, राइट? एक्चुअली मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम पे देखा, like you did some event at like basketball court. I'm watching it right now. Some Yes. Zumba and everything. Like again, it's a part of the business. So you're asking about a business model actually. कि तुम मेंबरशिप का एक रहेगा, पर्सनल ट्रेनिंग का एक रेवेन्यू स्ट्रीम है. सो हाउ डू यू have multiple revenue streams? Because I think it is a very crucial thing to have as a business. Yes, definitely. So basically ऐसा है कि जिम मतलब अभी वैसा नहीं रहा कि आपको सिर्फ जिम में आना है और ट्रेनिंग करनी है। लोगों को अभी घर से भी ट्रेनिंग चाहिए। मतलब आप देख सकते हो कि पहले जो था ना, वो हार्डकोर जिम्स में लोगों को वर्कआउट कराया जाता था और जस्ट वो घर पे चले जाते थे, जस्ट वाज द थिंग। पर अभी वही जिम्स में लोगों को डांस फिटनेस भी चाहिए, जुम्बा, बॉलीवुड डांस, भांगड़ा वगैरह ये सब चीजें चाहिए। लोगों को योगा भी उसके अंदर चाहिए। मतलब बहुत से अभी वास्ट फील्ड होते जा रहा है धीरे धीरे। तो मेरा एक टारगेट ऐसा था, एक आप बोल सकते हो कि के11 से मैं ज्यादा इंस्पायर इसकी वजह से हुआ हूँ ना, कि बहुत सी चीज वहां से सीखने मिलती है। जैसे आपने देखा कि पहले ब्रिक एंड मोटर स्कूल था अपना, उसके बाद में उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया पूरा। सो उसी तरह से मेरे दिमाग में भी वो टाइम पे ख्याल आया था कि यार ठीक है, पैंडेमिक है, नहीं कर पा रहा है, तो जैसे के11 ने यूज किया है सब टेक्नोलॉजी का, उस तरह से जिम क्यों ना लाइव टेलीकास्ट किया जाए। क्योंकि अभी
पैंडेमिक के बाद में लोगों ने जो इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं घर पे, जो उनके इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, सो दे वांट टू गेट ट्रेंड, बट उन्हें जिम में आने का टाइम नहीं है, या फिर घर पे इक्विपमेंट्स पड़े पड़े खराब हो रहे हैं वगैरह, ये सब चल रहा है। सो हम जिम को लाइव टेलीकास्ट डायरेक्टली करेंगे उनके पास में, जिससे वो घर पे भी रहते हुए ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें कोविड का बैरियर तो पहली बात खत्म हो जाता है, और हम बड़े क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं। मतलब तब ना मेरे लिए धुलिया की बाउंड्रीज नहीं रहेगी, मैं कहीं से भी बराबर। किसी भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। दिस वाज द थिंग। दूसरी एक चीज, आपको कोलैबोरेशंस बढ़ाने पड़ते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एकेडमीज हो गई, ये सब चीजें हो गई। इसमें क्या होता है ना, छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़े लोग भी होते हैं, पर उन्हें क्या होता है ना कि वो आप तक पहुंच नहीं पाते। सो मैंने एक मोटो ऐसा फिक्स कर लिया कि अगर लोग मेरे तक नहीं पहुंच रहे हैं ना, तो मैं लोगों तक पहुंचूंगा, कुछ भी हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ वही से आपको उन तक पहुंचना है। फिर अभी क्या होता है ना कि मैं अगर कभी वहां पर नहीं गया तो लोग जिम में आ जाते हैं। दिस इज द थिंग कि आपको वही से आपको पहले उनके हिसाब से चलना है, बाद में फिर लोग आपके हिसाब से चलना स्टार्ट करते हैं। सो ये एक हो गया। बस वैसे बहुत सी चीजें हैं कि जो मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता कॉल अबाउट दैट, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस मैंने फील किया हुआ है कि बहुत से लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है, ये क्या बातें कर या रहे हैं, ये सब होते अंडरस्टैंड, रहता आई है। अंडरस्टैंड। तुम्हारे सब, तुम सब रिलेटेड जिम, हाँ बाजू के जिम वाले सब देखने वाले हैं, हाँ तो हाँ, उनको दिस सब, इज द थिंग। उनको सीक्रेट सॉस नहीं क्योंकि मिलेगा। after this you are definitely going to tag me in your story, and they या will definitely visit and see the full episode in that. या ट्रू ट्रू ट्रू। So this is the इधर thing. So ऐसे बहुत सी चीजें होती है, पर आपको ना कुछ सोचते रहना चाहिए कि नया कैसे कुछ ना कुछ करते जाए। एक चीज से वो एक कहावत है ना कि आप एक बिजनेस में से 100 रुपए आपको मिल रहे हैं, उससे बेहतर है कि आपको 100 बिजनेसेस में एक एक रुपया मिले। तो ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको बहुत चीजें, मतलब एक भी बिजनेस आपका अगर स्टॉप हो जाता है तो 99 रुपीज आपके पास में है, और वही अगर आपका एक एक बिजनेस है और अगर वही बंद हो जाता है तो आपको 100 रुपए की जगह पर एक भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जीरो मिलेगा। दिस इज द थिंग। हाँ। सो मल्टीपल चीजों को आपको फोकस करना पड़ता है। दिस इज द थिंग। सो ये है, आप वेरियस चैलेंजेस वगैरह आप लोगों के लिए रख सकते हो। बाद में बराबर। ऐसे बूढ़े लोग भी है, मतलब ओल्ड एज होम्स जो है उसके अंदर आप जा सकते हो। अभी क्या होता है ना, एक जनरली उनके मन में ऐसी चीजें होती है कि यार हम तो बूढ़े हो गए, अभी हमें वेट ट्रेनिंग करके क्या बॉडी बिल्डर थोड़ी बन जाना है, तो हमें तो सिंपल एक्सरसाइजेस लगेंगी। तो आप उनको अप्रोच करो, उनसे बात करो। ओल्ड एज होम्स में जाने के बाद में जब उनसे बात करते हैं, तब वो लिटरली आपको सब प्रॉब्लम्स आपको आपके साथ में शेयर करते हैं। सो आप उनको बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आप योगा भी कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ मोटिव वही है कि आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है, मूव करो, कुछ ना कुछ करो, रुको मत हम्म। एक जगह पर। ये जब आप उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं हाँ ओके कर सकते हैं। सो फिर आप उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हो। अब मैं बोलता हूँ ना कि बिजनेस करना बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको ना वो टैक्टिक्स पता रहनी चाहिए, और आपको एक बार ना अच्छा एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए। वो जब वो बोलता है ना नशा जैसा हो जाता है, तो आप एक आराम बार से कुछ सीख ना गए तो देन बस नया साइकिल नया कैसे आप चलाते करना हैं? स्टार्ट कर देते हो यार। डेफिनेटली। एक बार सो साइकिल बहुत चलाना चीजें सीख आप गए कर तो फिर। सकते हो, बहुत चीजें। बराबर। And also, like, we like, you must be a busy person. Like, you are, how old are you? You are 20, I'm 23 complete. 23. 23, right? You are just 2 years older than me. And when did you start, with the Surya project? Uh, Last year, I think. no, no, no. I think I'll complete 2 years. 1.5 year. 1.5 year. You can take. 1.5. So like 21, 22. 21 थे तभी तुमने चालू किया है. Uh, yeah. I am 21 actually. So the Yeah, thing you is, can start so the something thing great. is, yeah. So the thing is कि learning from you, in the sense कि I understand that you are just 2 year, 3 years, 2 years older than me, but the tremendous amount of knowledge you have comparatively, like, to your field and everything, like, it's like just astonished me, you know. Because I knew you as a personal trainer and everything, but I had to pick your brain कि business कैसे करे and everything, because the thing is कि you are in the field, तुम कर रहे हो, like, again there will be people who will have more experience than you, but the thing is, learning from someone who knows a little bit more than you is a really good investment of your time, and it gives you tremendous value. And with that said, like,
Can you just tell me about your day, like कैसे होता है? Like for me right now क्या होता है कि I have my, like today I'll tell you what happened. So I did my personal training sessions in the morning. Then I had, like, I went for my workouts. Like in the middle, I did some, like, watched some YouTube videos, read a book and everything. Audio books generally I read. I went to the gym, and I came again, came back, had lunch, then took some rest. I went for the training session again. Like I also play football, no. So the thing is, I want to do something in the field of football. Like I want to go into coaching, but with that said, I also Yes, want to try out to be a professional. Like I'm striving for it. If I even if I get one season under my belt, like a top notch season in a good league and good team, that will be a dream come true. I'm striving for that, learning that. Now after that, I had another sessions of mine, and then now we are talking. So that is my days, how it goes. So like, you as a busy person, like you are not just directing the company, your company, which is Surya Fitness and Wellness, but also being owner, you are also on the field, actually, training people and giving your input. So how does a day look? like at 5 a.m. my day starts. Then You I don't get need to ready. go to, like, ये मैं इतने बजे उठता हूँ and ऐसे. You Okay, just need okay, to okay, give me a okay. brief. या सो सुबह से ट्रेनिंग वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है. एज यू नो दैट 6 बजे के आसपास में जिम्स में तो होना ही है आपको. उसके बाद में फिर अभी हमने स्पेशल क्रॉसफिट बैचेस है, एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज, वो टर्फ ऊपर के भी स्टार्ट किए हुए हैं. सो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ता है, मतलब मैं वहां पर जाता हूँ वगैरह. सो बाद में जिम्स में कुछ एक्टिविटीज होती है, वहां पर ध्यान देना पड़ता है. बाद में ट्रेनिंग पीपल, और बाद में जो कुछ भी न्यूट्रिशन कंसल्टेशंस वगैरह जो क्लाइंट्स के होते हैं, वो 9 बजे के बाद में, मतलब 9 से 10:30 के बीच में हो जाते हैं. आफ्टर दैट मैं खुद ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ मेरी खुद के लिए, मतलब मेरा खुद का ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ. और बाद में फिर आफ्टर 11:30 और 12 मेरे लिए वो 3 घंटे जो है ना, 12 से 3 बजे तक आप बोल सकते हो, उसके अंदर लंच वगैरह जो कुछ भी करना है, सोशल Training. मीडिया वगैरह हो गया. हाँ. सो वो सब मैं उसके अंदर पूरा निपटा लेता हूँ जो कुछ भी है. क्योंकि फिर मुझे बाद में वापस जिम में आना होता है, और जो कुछ भी लोगों ने मुझे बताया है, जो उनका डाइट प्रोटोकॉल वगैरह है, तो उसके हिसाब से उनको सब रेडी करना. बाद में मेरी खुद की पर्सनल ट्रेनिंग्स होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह है, तो वो सब मुझे कंडक्ट करनी पड़ती है. 5-6 बज जाते हैं मुझे उसके बाद में. बाद में फिर जिम्स की जो ग्रुप एक्टिविटीज है उससे कंडक्ट करना पड़ता है, फिर लोगों से बात करना, ऑन फ्लोर रुकना, और फिर कोलैबोरेशन के लिए मीटिंग्स वगैरह, वो सब जो कुछ भी शेड्यूल हो या रही, ये. तो वो सब. हाँ. तो वो सब चीजें करना, और फिर ऐसा करते करते रात को 10, 10:30 हो जाते हैं कंप्लीट. 12 भी बज जाते कभी कभी, जो आज बजने वाले. हाँ. या हो जाता है. सो फिर उसके बाद में जो कुछ भी आपका डिनर वगैरह कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी, मतलब वो हाँ, मेरा खाने का टाइम न्यूट्रिशन एक्चुअली फिक्स ठीक नहीं. है तो. हाँ. या इट्स या ओके. लाइक टुडे भी मैंने आज पहले ही कर लिया ना डिनर, तो आई एम लाइक, आई हैड इट. सो नहीं तो अभी इसके बाद मैं बनाता था और खाता था. सो दैट्स लाइक, फॉर मी ऑल्सो आई अंडरस्टैंड दैट विद द वर्क एंड यस. एवरीथिंग. और फिर जो एंड जिम सेटअप्स की जो मीटिंग्स वगैरह हुई, तो फिर वो होती है थोड़ी. मतलब अभी एक फ्रेंड है, K11 से ही है, तो एक्चुअली वो मेरे 2 बैचेस आगे था, पर उससे बीइंग स्ट्रांग ने मेरे बारे में बताया कि आपका K11 का कोई फ्रेंड होगा, सो आप उन्हें पहचानते हो, तो उन्होंने एक जिम सेटअप किया हुआ है बोल के. सो ही इज फ्रॉम कराड़, एंड ही met me on Facebook and he told that कि आप भी K11 से हो ना, तो मुझे भी जिम सेटअप करना है, तो मुझे हेल्प करो वगैरह. सो पहले वो जैसे एक रफ आइडिया लेने वाला था, बट वही हुआ कि लास्ट में वो बोले कि डेफिनेटली आपको, मतलब उनका एज ज्यादा है, 35 के अराउंड है वो. सो ही इज गोइंग टू सेट अप अ जिम इन कराड़. सो वो उसके बारे में स्ट्रेटेजी प्लानिंग, मतलब क्या करना है, क्योंकि कराड़ में ऐसा है ना कि मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, तो वो ब्रांड का वहां पर बहुत ज्यादा मतलब चलता है, मतलब मोनोपोली. मोनोपोली आप बोल सकते हैं. हाँ. सो अभी उसके बारे में जब मैंने उसको बोला ना कि मैं धुलिया में क्या कर रहा हूँ, तो आप जो वहां पर करो, सो अभी वो ज्यादा ये हो गए कि यस डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग.
तो अभी वो भी प्लानिंग चल रही है, तो वो चीज में क्या करना है, क्या इससे रिलेटेड। Because down the line, I also have this aspiration कि I'll do something of my own. Yeah, definitely, और always ready. You cannot. and Yeah. you know, talking about what was I going to talk about? So actually I lost myself there कि मैं कुछ तो तुमसे बात करने वाला था. हाँ, या सोशल मीडिया. So तुम खुद का like social media, whatever you do for Surya Fitness, you do it yourself or you have someone to do it? Actually, for editing some videos and photos, I have some people with me. But content which is provided by me. हाँ, but who थोड़ा you हेल्प do? लगता है क्योंकि हर एक चीज मैं स्टार्टिंग में करता था। एक्चुअली मैंने ऐसा रखा हुआ है ना कि मुझे हर एक फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब अगर हाँ कोई नहीं है, अगर वो बंदा नहीं है ना, तो मैं खुद भी वीडियो एडिट कर सकता हूँ, फोटोज एडिट कर सकता हूँ। हाँ, that's तो a plus point. हाँ, तो मैं ना पहले बहुत ज्यादा मतलब बिजी हो जाता था, और ये टाइम में से मुझे और टाइम निकालना पड़ता दोपहर में वीडियो फोटो एडिट करने के लिए। सो मैंने अभी दूसरा एक बंदा रख लिया है कि जो हेल्प करता है उसमें से, तो मेरा टाइम थोड़ा बच जाता है उसमें। तुम आउटसोर्स करते हो कंटेंट बेसिकली जो वीडियोस बनाने. लाइक हाँ समझो हाँ मैं क्या करता हूँ एक्चुअली. मैंने वीडियो बना दिया, ये पॉडकास्ट एक आउटसोर्स बोलने के लिए. लाइक मेरा माय ब्रदर इज एक्चुअली हेल्पिंग मी विद दिस right now. He's on a basically I'm paying him in a certain ways. I'm personal training him and everything, so that's the value he's getting out of it. So obviously he's going to edit this. Not much to be edited, पहले intro outro and then जो clips होते हैं ना, वो सब वो edit करने वाला है. So the thing is कि he's actually doing most of my content. जो Carousels रहता है ना, swipeable, हाँ वो हाँ content, यस। वो बहुत सारे उसमें spelling mistakes भी देखते रहोगे. He makes those. So he's also learning. So now it is like again, he's my brother. So like वो चल जाता है उसके लिए. So he's हाँ actually getting good at it because he wants to do it as a, he wants to be a videographer and something. So that is what he really wants to do in the future. So I'm outsourcing it from here. So are you doing something like that? तुम्हारा नो, समझो कोई. नॉट येट। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मुझे टीम कब से बोल रही है कि सर वी शुड, Can I थोड़ा can't बहुत सी चीजें हमने repeat? अभी क्लियर आ रहा है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, रिपीट करो. सो टीम का कहना ऐसा था कि सर वी शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत से है वहां पर मेरा ऐसा है ना कि मुझे जब तक कुछ चीज ऐसे एकदम परफेक्ट नहीं मिल जाती, वो मेरा एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं आप, तो मैं तब तक कुछ चीज के अंदर ना हाथ नहीं डालता हूँ। तो अभी ना मैंने पहले कंटेंट पूरा रेडी करके रख दिया, मतलब जो वीडियोस वगैरह, मतलब ऐसा है कि एक बार यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करो ना, तो आपको 2 महीने फ्लो तक होना चाहिए. कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। या यू शुड बी इन फ्लो। सो अभी वो मेरा रेडी हो चुका है। सो मे बी नेक्स्ट वीक और समथिंग आई विल स्टार्ट विद इट। Yeah, but तो the thing is, वो है। like I'll tell you guys, try to give my 2 cents on this. The thing about perfectionism is bullshit. तुम देखो मेरे पीछे, देखो ये बेड है, इधर मैं सोता हूँ. वो देखो चादर कैसा पड़ा हुआ है, ये पिलो है इधर पे. मैंने ना वो एक दो चीजें पिलो इधर रख दिया एक्चुअल में. सो दिस इज पीछे बेड है, ये टेबल है, यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ. वेबकैम 720p. ओके, ये माइक है मेरे पास एक्चुअली, बट इट्स लाइक वो लास्ट एपिसोड में द वॉल्यूम क्वालिटी वाज शिट, तो मैंने वो नहीं यूज किया और मैंने एयरपॉड्स यूज किए. नाउ दिस विल बी मच फॉर क्लियरर. सो ये कैसा है, अगर मैं परफेक्शनिस्ट होता तो ये पॉडकास्ट कभी हो नहीं पाता एक्चुअल में. नहीं, नॉट इन दैट सेंस, मतलब सब चीजें चाहिए ऐसा नहीं, एंड पर आपको वो कंसिस्टेंसी, मतलब परफेक्ट आपके हाँ, पास में सब I चीजें रेडी understand that, है, वो but उसके बारे में। what you should really do, like if you can take this advice, you can take this. Have कोई तुम्हारा भाई रहेगा या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड रहेगा, or even if you are paying someone, pay someone, like you can afford to do it. So गैरी वी देखते हो तुम, गैरी वेनरचक, हाँ उसका यस। रहता ना डी रॉक, वो उसका कैमरा मैन. तो वो कैमरा मैन इज पेइंग हिम एक्चुअली, इज फॉलोइंग हिम एवरीवेयर. सो नाउ राइट नाउ यू आर इन दिस पोजिशन कि तुम अफोर्ड कर सकते हो पर्सनली, नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ कंपनी भी कर सकते हो, तुम्हारे
जिम के नाम पे भी कर सकते हो, बट पर्सनली भी कर सकते हो. Have Hmm. that guy shoot all the things what you do in day to day life, and you have a team na for making videos, actually Yes. editing. So Yeah. उनको सिर्फ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देने का, छोटा माइक्रो कंटेंट बनाने का. एंड द थिंग इज कि ना वी थिंक ना, अरे यार इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज इट्स नॉट द वे आई वांट इट. बट you have to, sometimes you have to, as a leader of the team which you are leading, so social media team, let's suppose, sometimes you have to let them, like I'm learning this from my experience with my brother. Sometimes you have to let them fail. स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जानी चाहिए, बुरी Right. मिस्टेक्स हो जानी चाहिए, एम्बेरसमेंट वाली मिस्टेक्स हो जानी चाहिए. Then they realize कि yeah, it's not just for the time pass, it's like it's the real deal, and they will put effort and they will try to. And उनके जो आइडियाज है ना, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड उनको बोलना है ओके, Yes. आइडिया है, एग्जीक्यूट इट, शो मी द एग्जीक्यूशन. बिकॉज क्या होता है कि समझो ही कम्स अप विद दिस आइडिया कि ना ये करते हैं हम, देन इफ आई टेल हिम कि नहीं नहीं इट्स शिट, नहीं नहीं करेंगे. इफ इट इज वेरी शिट देन यू हैव टू टेल हिम. बट अगेन, बट No, मोस्ट ऑफ द बराबर टाइम है. इट इज लाइक तुमको, इफ यू टेल हिम ना इट इज बैड, वो डिमोटिवेट हो जाएगा. उसको बोलना है कि ना ओके अच्छा है ना, तुम करो, यू शो मी द रिजल्ट, लाइक Yes. कंटेंट जहाँ मैं अपलोड करूंगा. तो यू, Yeah, same with my team. Yeah, yeah, you like same. if the most practical advice is कि ना have a group of people like three, let's suppose, एक वीडियो निकालने वाला, एक एडिट करने वाला, वो दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं. Hmm. एडिट करने वाला, वीडियो निकालने वाला, ओके. और वो एक फेसबुक का ऐप है नया, मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर मैनेजर, मैंने क्रिएटर. Content creator. यस यस, Sorry. समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक हाँ, दैट. ऐसा कुछ तो भी है ऐसा. तो उस फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक कर सकते हो, और यू कैन स्केड्यूल. तो ना तुम्हारे Yeah. पास समझो माइक्रो कंटेंट रहेगा बहुत सारा बना हुआ, यू कैन स्केड्यूल इट, और वो चलते जाएगा, अपलोड होते जाएगा. एंड ना कभी कभी तुम खुद के पास तो अकाउंट रहेगा, तुम सेल्फी लेके ऐसे वीडियो बना सकते हो, वो एक्चुअली सेंड कर सकते हो टीम को, वो लोग एडिट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, एंड ये हो सकता है. ये एक साइकिल बन जाएगा ना तुम्हारा. बिकॉज द थिंग इज कि यू कैन afford to be in that place, like monetarily speaking. Okay, hold on to. So you can, actually, uh, you afford it monetarily speaking. पैसे है तुम्हारे पास, तुम पे कर सकते हो वो लोग को. फ्री भी कर सकते हो, अगर कोई स्टार्टिंग में उनको बोल सकते हो इंटर्नशिप है एंड एवरीथिंग, फ्री कर सकते हो. एंड your job is to actually give them the hope or manage them. Yeah, yeah. Just make the content and let them, give them the topics and let them explore. तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन ही तो है ना. तुम Same, तुम same. तुम्हारे साथ वीडियो लेके, कैमरा लेके घूमेंगे, then that will be much better. And then what happens है, तुम्हारे पास इतना कंटेंट है डालने के लिए, तुम ऐसे ही डालते रहोगे, like तुम्हारे एक साल में 10,000 पोस्ट हो जाएंगे, लेट्स सपोज. Wow. एंड अ, फिर तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि ना मेरा सोशल मीडिया क्या चल रहा है, तुम उधर देखोगे भी नहीं एक्चुअली. देन यू कैन फोकस ऑन योर जॉब, ये ऑटोमेट हो जाएगा. नाउ सोशल मीडिया अगर तुमने ऑटोमेट कर दिया, देन यू हैव अनलॉक द गोल्डन गूस बेसिकली. क्योंकि Yes. देयर इज सम ये ना डिस्ट्रैक्शन. या सो बेसिकली फिर तुम कंटेंट से बाहर नहीं जाओगे, एंड you will always be relevant. Okay. Yes. Definitely. I can hear the thing ना. क्या चल रहा है? Hello. Wait, I can hear you. I can hear you. कुछ तो चल रहा है ना काम. या many distractions, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास. बहुत बार पॉज किया ना हम लोगों ने. या दैट्स ओके. व्हाट आई वाज सेइंग इज कि तुम्हारे पास कंटेंट रहेगा, फ्लो होते रहेगा, एंड देन तुमको ऑटोमेट हो गया ना एक बार, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं. यू कैन फोकस ऑन योर ब्रिक एंड मोटर बिजनेस. Yeah. दैट वाज Automation एक्चुअली, होना is important असली में, इसमें वही एक है. and that is my 2 cents which I really want to give. And
Yeah, I think we have spoke a lot actually. हम लोग ने कितना टाइम हो गया? 2 घंटा Two होने hours, आया. 2 hours. Hmm. So yeah, एक तो first of all for the audience कि ना, sorry for all the कि ना आवाज आ रहे and everything because connection issues, because it happens Yeah, because we are not in Mumbai. I am in Mumbai. He is not in Mumbai. In Dhule, right? yeah. So all the noises and everything, it is going to be there. And Yes. process की है, so we have tried to keep it, steady and continuous. So yeah, on the ending note, what would you uh, what would be your ending notes on this podcast, to the audience? The audience, but regarding which ones, like, How once you say, like where they can reach you out, who they know who you are, they how they can reach you out if they want your services, how they can reach you out and everything about that. okay, so if they want to reach to me, they can reach by social media platforms. Like, if they want, they can connect with me on Instagram or Facebook or LinkedIn and various social media accounts. And if they want to hear something about fitness and nutrition science, then they can connect with me on Avalon Scenes also. So I'm conducting some events over there. So if they want, they can get notified about that. And I'm ready gym setup and business. Okay, is it clear? Yeah, can you repeat the last bit? Gym Okay. setup. So yeah, if anyone wants to set up their own gym and is not able to get any idea about it, then yeah, I can definitely help them out. So they can reach out to me from various social media accounts. And if you all want, you can ask Amar for my number also. He can provide you for that. Yeah. Yeah, sure. And obviously, like the number, I'll not share it right now because I don't want Yeah, to publicly दे दूंगा नहीं. But yeah, the thing is, I'll share your social media, which is your Instagram link down there, so people can reach you out, and my handles will be also there. And then if you like, you can ask, like if you really want to talk to him personally, you can reach out to him to get his number also, or you can ask me. I can hand over you to him like on Instagram, then you ask his number because I don't want to be the person who gives away numbers. Okay, so that was that, and with that last note again, as we said, the community of people who are following the right approach in terms of training, nutrition, and fitness. So this is growing on, and I'm really looking forward for the next people who are going to be on the podcast. People like you, there are going to be business owners, and there are going to be like fitness professionals, and a lot of inspirational people. Last time I had this podcast with Mehak, so yeah. right? So I've seen it. yeah, seen that, right? I think this will be up in 1 or 2 days, and then let's see. I'm also new to this, so basically, yeah. Yeah. At the end, जो बोलना पड़ता है ना, like, share, and subscribe. So guys, if you subscribe to this, basically YouTube channel, it will really mean a lot. There will be more episodes coming and clips. There Yeah. are clips also, right? छोटे मोटे clips भी I'm sending it on this YouTube channel itself. So And share it with your friends. If you know anyone who is interested in this particular topic or related to gym setup or nutrition consultation, and also you can share with your friends also so that they can gain some knowledge about this thing. hmm. Yeah, it was great talking to you, Saurabh. I'm going to end the recording, the hit the stop button right now. Yeah. Thanks, Thanks, guys, Amol. Thanks for a lot. inviting me. It was a pleasure. And yeah, guys, stay fit. Yeah. Hey, this is Amol. You can catch new and exciting episodes with the full podcast on my YouTube channel. Link in the description.